الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ پاکستان ٹیکس چینل کے آج کے لیکچر میں خوش آمدید۔ جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ لاسٹ لیکچر میں سر منشا سکھیرا صاحب نے بہت تفصیل کے ساتھ ہمیں کمپنی کی ٹیکسیشن کے متعلق جو بنیادی ڈفرینسز ہے انکم ٹیکس آرڈیننس کے اندر، اور اسپیسیفکلی اس کی تعریف کمپنی کی، اس کے جو انڈیویجول اے او پی سے ٹیکس کے حوالے سے سیکشن سر نے بڑی ڈیٹیل سے ود ہولڈنگ کے، منیمم کے، اس کی اپنا جو اکاؤنٹس کے اور باقی ساری بڑی تفصیل سے رہنمائی کی تھی۔ آج اسی سلسلے کا جو سیکنڈ پارٹ ہے ہمارا، آج موضوع وہی ہے انکم ٹیکس ریٹرن کمپنی، لیکن اس کے اندر آج سر سے ہم جو اس کی پریکٹیکل فائلنگ ہے اس کے اوپر تفصیلی رہنمائی حاصل کریں گے۔ تو میں گزارش کروں گا سر منشا سکھیرا صاحب سے کہ تشریف لائیں اور انکم ٹیکس ریٹرن اسپیسیفکلی کمپنی کے حوالے سے ہمیں پریکٹیکل فائلنگ کے حوالے سے تفصیلی رہنمائی کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آنریبل ممبر آف پاکستان ٹیکس چینل، السلام علیکم۔ تو آج ہمارا سیکنڈ پارٹ ہے پریکٹیکل فائلنگ آف آن لائن فائلنگ آف کمپنی ریٹرن۔ تو بیفور پروسیڈنگ فردر ہمیں دیکھنا ہے کہ ہر سال جو ایچ ٹیکس ایئر از این انڈیپینڈنٹ ٹیکس ایئر، تو ہر ٹیکس ایئر کے لیے انڈیپینڈنٹ پریسکرائب فارم آتا ہے، جیسے کہ ہم نے ڈیفینیشن لاسٹ ٹائم پڑھی تھی، سیکشن 114 کا سب سیکشن 2 تھا کہ ریٹرن آپ نے فائل کرنی ہے آن دا پریسکرائب فارم۔ تو پریسکرائب فارم جو ہے ہر سال کے لیے انڈیپینڈنٹ آتا ہے اور رول فریم ہوتے ہیں۔ تو اس میں اس سال کا ایس آر او ریٹرن ہے فار دا ٹیکس ایئر 2024 کے لیے انڈیپینڈنٹ ایس آر او کے لیے پہلے ڈرافٹ پبلیکیشن ہوتی ہے، 15 دن ودن 15 ڈیز اس کے کمنٹس وغیرہ لیتے ہیں، اس کے بعد فائنل کیا جاتا ہے تھرو نوٹیفیکیشن ایس آر او، دین اٹ بیکم پارٹ آف دا انکم ٹیکس رولس۔ تو آن دیٹ بیسس ہم نے ریٹرن فائل کرنی ہے۔ تو یہ ایس آر او 4 جولائی 2024 کو آیا ہے 949۔ تو اس میں ان دا ایکسرسائز آف پاور انڈر سیکشن 237 ڈیڈ ود سیکشن 114۔ تو یہ پریسکرائب ہوا ہے، رول میں امینڈمنٹ ہوئی ہے اور اس کے لیے پریسکرائب فارم جو ہے وہ آ گیا ہے۔ تو کمپنی کے لیے، انڈیویجول کے لیے ریٹرن سیپریٹ ہے۔ تو آن لائن آئی آر ایس پہ ہر جو کمپنی کا این ٹی این ہوگا اس کی انڈیپینڈنٹ آپ کو کھلے گی۔ جب اس سے پہلے ہم دیکھ لیں کہ ٹیکس ایئر کیا چیز ہے، دیٹ از موسٹ امپورٹنٹ۔ بلکہ اس سے پہلے ہم دیکھ لیں تو سب سے پہلے آپ نے پروفائل آف دا کمپنی جو ہے وہ آپ نے چیک کرنا ہے کہ وہ آپ کا اپڈیٹڈ ہے کہ نہیں، آپ کی نیچر آف بزنس کیا ہے، آپ مینوفیکچرنگ ہے، سروسز ہے، یا کوئی آپ ٹریڈنگ ہے، ہول سیلر ہے، ریٹیلر ہے، اس کو اپڈیٹ کر لیں۔ پلس آپ دیکھ لیں کہ آپ کے جو ریکوائرڈ بینک اکاؤنٹس کی ڈسکلوجر ہے وہ وہاں ہے کہ نہیں ہے، نہیں ہے تو اس کو اپڈیٹ کر لیں۔ اسی طرح الیکٹرک کنیکشن یا گیس کنیکشن یا ادر ریکوائرمنٹ جو ہے تو پروفائل اپڈیٹ 181 آپ کا جو ہے سیکشن، اس کا پریسکرائب فارم جو بھی ہے اس کو آپ فل کر کے پہلا کام وہ کریں گے، آپ اپڈیٹ کریں گے۔ پھر نیکسٹ جو ہے وہ ہم نے دیکھنا ہے کہ آپ نے کس سال کی ٹیکس ریٹرن فائل کرنی ہے، ٹیکس ایئر کیا ہے۔ تو ٹیکس ایئر کے لیے سیکشن ہے 74۔ تو 3 قسم کے ٹیکس ایئر ہوتے ہیں۔ ایک ہم نارمل ٹیکس ایئر ہے جس کو ہم جو فرسٹ ڈے آف جولائی سے لے کے 30 جون تک جو اینڈ ہوگا اس کو ہم کہیں گے نارمل ٹیکس ایئر، اور اس کی انڈیکیشن یا ڈونیشن جو ہے کیسے ہم ڈونیٹ کرتے ہیں وہ کیلنڈر ایئر سے ہوتی ہے۔ کیلنڈر ایئر ہوتا ہے آپ کا فرسٹ ڈے آف جنوری سے لے کے تو دسمبر تک، جو 31 دسمبر تک یہ ہے، اس کو ہم کیلنڈر ایئر کہتے ہیں۔ اور جو فرسٹ ڈے آف جولائی سے سٹارٹ ہو 30 جون تک اینڈ ہو اس کو ہم فائنینشیل ایئر کہتے ہیں۔ تو یا اس کو انکم ایئر بھی کہتے ہیں۔ انکم ایئر کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو وہ فائنینشیل ایئر ہے، جس کا وہ فائنینشیل ایئر ہوگا اس کو ہم نارمل ٹیکس ایئر کہیں گے۔ دیٹ ول بی انڈیکیٹڈ ڈونیٹڈ فرام دا ود دا کیلنڈر ایئر۔ جیسے ہم کہیں فرسٹ ڈے آف جولائی 23 سے لے کے 30 جون تک جو آپ کا فائنینشیل ایئر ہے جو اینڈ ہوا ہے تو اس کو ہم کہیں گے، اس کو وہ اس کی انڈیکیشن ہوگی ٹیکس ایئر 2024، کیونکہ 23 میں سٹارٹ ہوا، 24 میں اینڈ ہوا، فائنینشیل ایئر کو انڈیکیشن اس کی ہوگی ود دا ٹیکس ایئر 2024۔ تو اسی طرح یہ ایک نارمل ٹیکس ایئر ہے جو کہ فائنینشیل ایئر جس کو ہم کہتے ہیں۔ اگر کسی کا انکم ایئر 30 جون کو اینڈ نہیں ہوتا، 12 میں ہی ہے، فرسٹ ڈے آف جولائی سے لے کے اور 31 ڈے آف دسمبر کے اینڈ
जो फर्स्ट 6 मंथ है फाइनेंशियल ईयर के उसमें एंड होता है, तो उसको बाकी जो वहाँ एंड होगा फर्स्ट डे जनवरी से लेके जो 30 जून तक एंड होगा उसका यही फाइनेंशियल ईयर वाला ही होगा, यही उसी साल में इंडिकेट होगा। और जो स्पेशल ईयर है फर्स्ट डे ऑफ जुलाई से लेके जो 31 दिसंबर तक एंड होगा तो उसको हम स्पेशल ईयर उसको समझेंगे। अदर देन जो नॉर्मल ईयर है वो फाइनेंशियल ईयर है, या थर्ड कैटेगरी है उसको हम ट्रांजिशनल टैक्स ईयर कहते हैं। तो तीनों में डिफरेंसेस हम देख लेते हैं क्या है और किस तरह आपने उसकी कैलकुलेशन करनी है, या कौन सा साल कैलेंडर ईयर किसको आपने उससे इंडिकेट करना है या रिप्रेजेंट करना है। तो पहले हम नॉर्मल ईयर का तो इजी है कि आप फर्स्ट डे ऑफ जुलाई से लेके 30 जून तक एंड हुआ, जहां एंड हुआ जिस कैलेंडर ईयर में तो वो उसका टैक्स ईयर है। अब फाइनेंशियल ईयर है, सपोज कोई ईयर एंड हो रहा है आपका सितंबर को एंड हो रहा है, तो हमने फिर देखना है कि जो ये सितंबर को एंड हो रहा है ये फाइनेंशियल ईयर जो है किस ईयर फाइनेंशियल ईयर है। सितंबर में हो रहा है तो ये कौन सा फाइनेंशियल ईयर, सितंबर अगर 23 में एंड हो रहा है तो फाइनेंशियल ईयर हम देखेंगे फर्स्ट डे ऑफ जुलाई से लेके 30 जून को एंड हो रहा है, समझे। उसकी लास्ट डेट जो आपकी नॉर्मल टैक्स ईयर की है वो जिस साल में एंड हो रही होगी तो उसका जो कैलेंडर ईयर होगा उससे हम इंडिकेट करेंगे। सपोज आपका है 30 सितंबर 2023, तो ये किस फाइनेंशियल ईयर में फॉल करता है, फर्स्ट डे ऑफ जुलाई से लेके 24 तक। तो इसको 24 तक एंड हो रहा है तो 24 वाला इसको हम कहेंगे कि टैक्स ईयर इसका 24 है। ऑल्दो वो एंड हो रहा है इन द टैक्स ईयर जो उसका कैलेंडर ईयर है 2023 में, लेकिन उसको इंडिकेट करेंगे विद द टैक्स ईयर 2024 और उसकी रिटर्न फाइलिंग डेट होगी सितंबर उसके बाद जो एंड होगा फाइनेंशियल ईयर के फॉलोइंग द फाइनेंशियल ईयर जो डेट होगी। इट मीन अगर सितंबर आपका है इनकम ईयर तो इसको आपको मिल जाएंगे कोई तकरीबन 6, 3, 9 और तकरीबन साल मिल जाएगा। विद इन नेक्स्ट साल अगला जो सितंबर होगा उस तक का फाइल करनी है। फर्स्ट ऐसे समझ लें कि फर्स्ट डे ऑफ जुलाई से लेके जिसका इनकम ईयर 31 दिसंबर तक एंड होगा उसका नेक्स्ट ईयर जो होगा वो उसका कैलेंडर ईयर जो होगा वो उसका टैक्स ईयर होगा और उसकी रिटर्न आपने नेक्स्ट फॉलोइंग जो सितंबर है वहाँ तक फाइल करनी। और बाकी जितने भी टैक्स ईयर एंड होंगे फ्रॉम द इनकम ईयर एंड होगा फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ जनवरी से लेके जून तक, इनका सारों का वही साल होगा जो नॉर्मल टैक्स ईयर है और दिसंबर तक आपने रिटर्न फाइल करनी होगी। तो ये क्लियर है। तो उसके बाद नेक्स्ट जो है ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। ट्रांजिशनल ऐसे है कि अगर आप कोई नॉर्मल टैक्स ईयर वाला है या कोई स्पेशल ईयर वाला है, वो चाहता है कि वो टैक्स ईयर चेंज करे, तो चेंज करने के लिए कमिश्नर को एप्लीकेशन देगा और कमिश्नर अगर उसको जस्टिफाई समझेगा तो वो दे देगा कि ठीक है आप चेंज कर लें। अगर आप स्पेशल ईयर से नॉर्मल ईयर आते हैं, सपोज आपका इनके ईयर जो एंड हो रहा है पहले स्पेशल ईयर है वो सितंबर में एंड हो रहा है, तो अब आपने करना है जून से स्टार्ट करना है, जुलाई से स्टार्ट करना है। तो आपने देखना है कि आपका जो एंड हुआ है वहाँ जो एंड हुआ है वो अगला नेक्स्ट कमेंस कब हुआ है, तो वो डिफरेंट पीरियड जो डिफरेंस है जो चेंज वाला पीरियड है उसको हम ट्रांजिशनल टैक्स ईयर करेंगे। दिसंबर से एंड हुआ है तो नेक्स्ट जो आपको फर्स्ट डे ऑफ जुलाई से स्टार्ट करना है, तो आप सितंबर से लेके जून तक जो आपका पीरियड है 9 मंथ, दैट इज ट्रांजिशनल पीरियड। तो उसको वो इंडिपेंडेंट पीरियड होगा, तो उसको भी हमने देखना है कि वो कब एंड हो रहा है और उसका फाइनेंशियल ईयर कौन सा है और कौन सा उसका फॉलोइंग होगा, उस टैक्स कैलेंडर ईयर से उसको इंडिकेट करेंगे। तो ये 3 फाइनेंशियल ईयर है। सबसे पहले आपने रिटर्न फाइलिंग कंपनी करने के लिए देखना है कि उसका अकाउंटिंग ईयर या इनकम ईयर कब एंड हो रहा है। अगर 30 जून को ही एंड हो रहा है तो फिर आपने दिसंबर तक फाइल करनी है। 30 जून फर्स्ट डे ऑफ जुलाई से लेके 30 जून तक है, फर्स्ट जनवरी से लेके 30 जून तक है तो दिसंबर तक फाइल करनी है। फर्स्ट डे ऑफ जुलाई से लेके 31 दिसंबर तक है तो नेक्स्ट फॉलोइंग जो होगा सितंबर तकरीबन ऑलमोस्ट साल या जो भी पीरियड बनता है उसमें आपने फाइल करनी है। तो यहाँ सबसे पहले आपने टैक्स ईयर जो है इसमें अदरवाइज आप देख सकते हैं, तो ये वाला आपने पहले देखना है। तो सबसे प्रोफाइल अपडेशन है, फिर आपने टैक्स ईयर देखना है। टैक्स ईयर से अपना पासवर्ड कोड शोड डालना है, तो वो पूछेगा कौन सा टैक्स ईयर, तो आपने ये टैक्स ईयर जो भी आपका रेलिवेंट बनता है उसकी कंप्यूटेशन कैलकुलेशन आपने करनी और अकॉर्डिंगली आपने फिर स्टार्ट हो जाना। अब हर साल के लिए अलग रिटर्न है। 24 वाला है तो 24 की खुलेगी, 23 वाला है 23 की खुलेगी, 22 है तो 22 वाला खुलेगी। ऑनवर्ड हर इंडिपेंडेंट टैक्स ईयर के लिए प्रेस्क्राइब फॉर्म जो है रिटर्न को सेपरेट है। ये बेटा खोलें अब।
یہ بینک اکاؤنٹ یہ آپ اپڈیٹ کریں گے, کنیکشن اپڈیٹ کریں گے, اور بھی کوئی انفارمیشنز ہے, نیچر آف بزنس ہے, آپ ٹریڈنگ ہے یا آپ کی مینوفیکچرنگ ہے, ریٹیلر ہے, ہول سیلر ہے, ایجنٹ ہیں, ڈسٹریبیوٹر ہیں, کیا ہیں آپ, یا سروس پرووائڈر ہیں, تو وہ اکارڈنگلی آپ اس میں ساری اپڈیشن آپ کر دیں گے جو ریکوائرڈ ہے. پہلے اپڈیشن جو ہے اپنا جو پروفائل ہے وہ اپڈیشن فرسٹ ہے, سیکنڈ آپ نے ٹیکس ایئر کرنا ہے, تو آپ اس کے بعد پھر ہم کمپوٹیشن پہ آتے ہیں. پھر آپ کا پاسورڈ وہ دیکھ لیں, کوڈ شوڈ دیکھ لیں, لگائیں اور ٹیکس ایئر لکھیں, اور آن ورڈ آپ کی ریٹرن کھل جائے گی. تو ریٹرن میں آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کتنے پارٹ ہیں اس کے اور کہاں سے ہم نے سٹارٹ کرنا ہے. یہ ادھر آ جائیں تو اس سائڈ پہ ہم دیکھتے ہیں, تو آئیکن اس سائڈ سے دیکھتے ہیں, ڈیٹا ہے, رجسٹریشن ہے, ڈکلیریشن ہے, ایسٹ ڈکلیریشن ہے, ریکٹیفیکیشن ہے, اپیل ہے, ریفنڈ ہے, ڈی این بی وی ایف پی ہے, ود ہولڈنگ ہے, ایڈوانس ایکٹ ہے, پیمنٹ ہے, اور جوڈکشن ہے. یہ سارے آپ کو سارے کھول کے چیک کر سکتے ہیں کس چیز سے ڈیل کرتے ہیں. تو اب یہاں امورٹائزیشن ہے, ڈیپریسیشن ہے, منیمم ہے, آپشن ہے, پی ٹی آر ہے, پیمنٹ ہے, کمپنی ڈائریکٹر ہے, اور اٹیچمنٹ ہے. تو اکارڈنگلی آپ جہاں جہاں اسٹیپ وائز آئیں گے. تو سب سے پہلے ہم پروفائل آپ نے اپڈیٹ کر لیا, آپ نے ٹیکس ایئر ایڈ کر دیا. اب ہم ادھر دیکھتے ہیں کہ آپ کی کمپنی اگر ہے, کمپنی میں آپ کے سورس جو ہیں وہ کہاں کہاں سے ہو سکتے ہیں. وہ پراپرٹی انکم ہے, بزنس ہے, کیپٹل گیم ہے, ادر سورس ہے, فارن سورس ہے, ایگریکلچر ہے, اور پھر اس کے بعد ٹیکس چارجیبل ہے, اور پھر پیمنٹ ہے. تو ان ہیڈ کو ہر ایک کے لیے پراپرٹی اگر انکم ہے تو پراپرٹی کا سیپریٹ فارم ہے, تو اس سارے کو ہم فل کریں گے. بزنس ہے تو بزنس کا چارجیبلٹی علیحدہ ہے, الاؤنس, ڈیڈکشن, ڈیپریسیشن سیپریٹ ہے, ہم فل کریں گے, دیکھتے ہیں کیا کیا ہے. اس کے بعد ادر سورس کی انکم ہے تو وہ کیپٹل گین ہے, تو اس کے لیے سیکشن علیحدہ 27 ہے, 39 آپ کا ہے, وہ کمپلیٹ ہم ایک ایک فل کر کے دیکھیں گے. تو فارن سورس ہے وہ ایگریکلچر انکم ہے تو اس کی ڈکلیئر ہے. پھر اس کے بعد ٹیکس چارجیبل ہے, کمپوٹیشن ہے, پیمنٹ ہے, وہ سارے ہیڈ دیکھیں گے. اس طرح اس میں سے آپ کا ڈائریکٹ الاؤنسز بھی ہے, ود ہولڈنگ کی ایڈجسٹمنٹ ایڈجسٹیبل ہے, یا فائنل فکس منیمم ہے, یا ادروائز کوئی آپ کے ریبیٹ ہے, ڈیڈکشن ہے, کریڈٹ ہے. تو کمپوٹیشن سارے ہم ایک ایک دیکھیں گے. تو سب سے پہلے ہم اس میں جو مین چیز جو دیکھنی ہے وہ ہم نے پہلے دیکھنا ہے کہ سب سے پہلے کہ آپ کے جو اکاؤنٹ فائنینشیل اسٹیٹمنٹ ہیں وہ آڈیٹڈ ہوں گے. تو کمپنی کے لیے مینڈیٹری ہے کہ آڈیٹ اکاؤنٹ کسی چارٹ اکاؤنٹنٹ سے ہو, آڈیٹر رپورٹ ہو, اس کے ساتھ آپ کی ڈائریکٹر رپورٹ بھی ہو. اگر ادر کوئی فارمیلٹی ہے, لسٹڈ ہے, ان لسٹڈ ہے, پرائیویٹ ہے, کیا ہے اس کی جو ریکوائرمنٹ ہے, یا کوئی این جی او ہے, این پی او ہے, تو اس کا ٹرسٹ ہے, تو اس کے وہ اکارڈنگلی آپ نے پہلے ریویو کرنا ہے. تو یوزلی اکاؤنٹنگ میں اور ٹیکس میں ڈفرینسز کیا ہے, پہلے ہم انکم ڈفرینسز لیتے ہیں, یا ریونیو, یا آپ ٹرن اوور ڈفرینس, یا ریونیو جو ہے, سورس آف ریونیو جو ہے اس کو دیکھتے ہیں. اس کو کیسے ہم نے ریکنسائل کرنا ہے ٹو دا انکم ٹیکس لا, یا انکم کے, کیونکہ انکم میں سورس آف انکم جو ہے پراپرٹی, بزنس, کیپٹل, ادر سورس, فارم, یہ دیے ہوئے ہیں, یا ایگریکلچر. تو وہاں ہم نے جو پروفٹ اینڈ لاس یا انکم اسٹیٹمنٹ بنانی ہے وہاں کہاں یہ گروپ ہوں گے, تو وہاں ہم دیکھیں گے. تو وہاں اس کی 2 کیٹیگری ہوں گی. تو ایک کیٹیگری ہوگی فرام دا آرڈنری ایکٹیویٹی, جس کو ہم ٹرن اوور, سیل یا سیل فرام گوڈس سروسز کہتے ہیں. باقی سارا کچھ ادر میں ہوگا. تو وہاں ادر اور ٹرن اوور یا سیل نارمل ایکٹیویٹیز ہے, ٹریڈنگ یا مینوفیکچرنگ ایکٹیویٹیز ہے آپ کی. ریونیو جس کو ٹرن اوور سیل کہتے ہیں, گراس ریسیٹ جو ہوتی ہیں, یا گراس انکم یا گراس ٹرن اوور, وہ والی آئیں گی آپ کی. اور اس کے علاوہ باقی ادرز میں بک ہوں گی, تو ادر میں سے پھر آفٹر لاس لیس کریں گے. تو سب سے پہلے ہم نے ایک تو وہاں فارمیٹ گیون ہے کہ ادر کو پھر ہم نے جو بزنس والی ہے, بزنس والی میں بھی ایڈجسٹمنٹیں کرنی ہے, کیونکہ وہاں الاؤنسز, ایکسپینسز اور ہوں گے, یہاں اور ہوں گے, تو اس کو بھی ایڈ لیس کرنا ہے. اور وہاں پھر اس کے بعد اس کی ڈفرینٹ سٹائل ہو سکتے ہیں پریزنٹیشن کے. ایک تو ہو سکتا ہے کہ آپ ٹریڈنگ بناتے ہیں, ایک سیل پہ ٹرن اوور, دوسرے پہ ٹریڈنگ ایکسپینس, پروفٹ اینڈ لاس ایکسپینس, پھر اس کے بعد فائنینشیل, پھر ادرس, اور اس کے بعد آپ کا پرافٹ بفور ٹیکس, پھر ٹیکس, پھر آفٹر ٹیکس. اس طرح وہ کمپوٹیشن اکارڈنگ ٹو دا اکاؤنٹنگ پرنسپل یا 4th 5th شیڈول جو ہیں جو ریلیونٹ ہے کمپنی ایکٹ کا, اس کے مطابق بنے ہوں گے. تو اب ہم نے ایک تو جب پریزنٹیشن کرنی ہے اپنے اس میں, تو ایک تو یہاں پریزنٹیشن کو ہم نے فالو کرنا ہے جو ٹیکس کی ہے.
तो टैक्स के मुताबिक वो उसकी एडजस्टमेंट आगे पीछे हो सकता है। अल्टीमेटली जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो सेम होगा, लेकिन हो सकता है टर्नओवर की प्रेजेंटेशन या परचेजेज की प्रेजेंटेशन या एक्सपेंसेस की आगे पीछे हो, तो इसको हमने फॉलो करना है। अल्टीमेटली आपने कैलकुलेट करनी है और टोटल हो। उससे पहले हम देख लेते हैं, तो सबसे पहले इनकम फ्रॉम बिजनेस को हम देखते हैं, फिर हम प्रॉपर्टी में, कैपिटल गेन में या आपका जो अदर सोर्स है उसमें आएंगे। बिजनेस में देखें तो एक मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग अकाउंट है। टर्नओवर के दो पार्ट बनाए गए हैं, तो ग्रॉस टर्नओवर है जो आपकी, तो उसको मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग अकाउंट है या अदर रेवेन्यू है। तो यहाँ अब ये टर्नओवर के दो पार्ट हैं। ग्रॉस रेवेन्यू ये है, तो ये ग्रॉस, इसकी फिर आगे कैटेगरी है, फिर आगे अदर रेवेन्यूज़ है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इनकम फ्रॉम लॉस बिजनेस। अल्टीमेटली इसमें देखें जो एंड होगा, जी ग्रॉस के बाद नेट आगे। चलो पहले ग्रॉस प्रॉफिट जो है आपका, ग्रॉस प्रॉफिट और जो आपका अकाउंट्स में ग्रॉस प्रॉफिट है, ये इसके साथ टैली भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते। लेकिन नेट प्रॉफिट जो है, नेट प्रॉफिट किधर पे, ये अकाउंटिंग प्रॉफिट है। यहाँ आपने देखना है कि जो यहाँ टोटल अकाउंटिंग प्रॉफिट आएगा, ये आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसके साथ टैली होना चाहिए। हो सकता है ग्रॉस प्रॉफिट या प्रॉफिट इन लॉस एक्सपेंसेस या टर्नओवर कम ज़्यादा आपने की हो, अभी हम देखेंगे कि क्यों डिफरेंसेस हो गए, बाकी में डिफरेंसेस हो सकता है। अल्टीमेटली ये अकाउंटिंग प्रॉफिट लॉस जो है ये आपका सेम होना चाहिए। तो अब हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि क्या डिफरेंस है। इसको जब फिलिंग करनी है तो कुछ काम आपने करने हैं, जैसे कि अब हम ग्रॉस रेवेन्यू को देखेंगे। तो ग्रॉस रेवेन्यू जब आपने फिगर इंसर्ट करनी है यहाँ और अकाउंट्स में भी देखनी है, तो आपने 3-4 चीज़ें और भी चेक करनी है, ताकि क्योंकि बाद में आपको उस पर नोटिस आ सकते हैं। फर्स्ट आपने टर्नओवर या सेल जो देनी है, तो उसको देखना है कि आपने बैंक स्टेटमेंट में भी क्रेडिट एंट्री चेक कर लें कि क्रेडिट एंट्री जो है वो और सेल में कितना का डिफरेंसेस है। कोई अबनॉर्मल डिफरेंस तो नहीं, ऑलमोस्ट डबल ट्रिपल तो नहीं क्रेडिट, तो उसको रिकनसाइल कर लें कि आपके पास उसको डिफरेंसेस को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं या क्या रीजंस हैं। क्योंकि यहाँ कंपनी में आपने अक्रूवल सिस्टम अडॉप्ट किया हुआ है, जबकि बैंक में रिसीट सिस्टम होता है कि रिसीट बेसिस है। तो एक तो आपके पास टाइमिंग डिफरेंस है, क्योंकि अक्रूवल सिस्टम में आप जब राइट टू रिसीव होगा उस वक्त रिकॉग्नाइज करेंगे, लेकिन बैंक में जब रिसीव होगा इवन वो रिसीट पास ईयर की भी हो सकती है, एडवांस फ्यूचर ईयर की भी हो सकती है, करंट भी हो सकती है। लेकिन यहाँ जो इस साल से, इसलिए टैक्स ईयर इंपॉर्टेंट है। जो टैक्स ईयर में आपने अक्रूवल राइज हुई है या राइट टू रिसीवेबल है, आपने वो रिकॉग्नाइज कर लिया है, इवन तो उसकी रिसीट पहले ले ली है या बाद में ली है या करंट ईयर में ली है। तो इसलिए अक्रूवल सिस्टम कंपनी ने अक्रूवल ही अडॉप्ट करना है, और सेक्शन 32 है उसको आप दे सकते हैं, और 34 में अक्रूवल डिफाइन है कि अक्रूवल एक्सपेंस अक्रूड कब होते हैं और कब वो होते हैं। इसी तरह मैचिंग और प्रूडेंट कंसेप्ट है, तो वो डिटेल में हम नहीं जाते। तो सबसे पहले आपने बैंक वाला क्रेडिट एंट्री को, उसमें कंट्राक्ट भी हो सकते हैं, उसमें लोन भी हो सकते हैं, उसमें कैपिटल कंट्रीब्यूशन भी हो सकती है, उसमें डिस्पोजल ऑफ एसेट भी हो सकते हैं, तो वो सारों को आपने रिकनसाइल करनी है। आपकी सेल्फ डिपॉजिट भी हो सकता है, आपने खुद ही विथड्रॉ किया, डिपॉजिट करा दिया, तो इसलिए वो सारी जो जितनी भी एंट्री है, कोई डिसऑनर चेक हो सकता है, कोई और डबल एंट्री हो सकती है, बैंक के एरर हो सकते हैं, तो वो सारों को आपने रिकनसाइल करना है विद योर, जितनी आप टर्नओवर या सेल डिक्लेयर कर रहे हैं। तो एक तो बैंक वाला क्रेडिट एंट्री, जितने भी बैंक हैं टोटल कर लेंगे, टोटल ओपनिंग बैलेंस क्या है, ड्यूरिंग द ईयर क्रेडिट कितने हैं, डेबिट कितने हैं, क्लोजिंग कितने हैं, जो टोटल है उसको इसके साथ आप अपने रेवेन्यू के साथ रिसीवेबल पेबल, जो रिसीवेबल ओपनिंग क्लोजिंग है उनकी एडजस्टमेंट कर लें, उनके ओपनिंग क्लोजिंग जो आपके एडवांसेज है उनकी एडजस्टमेंट कर लें, फिर बाकी जो अपनी लोन है या कैपिटल है या इन्वेस्टमेंट है, डिस्पोजल, उसकी सारी एडजस्टमेंट कर लें। ये सेल्फ डिपॉजिट है, डिसऑनर है, सब करने के बाद आप देखेंगे रिकनसाइल होता है, सेम है, तो फिर ओके और ठीक है। उसके बाद और जो आपने रिकनसाइल करना है, अगर आप रजिस्टर है अंडर द सेल टैक्स एक्ट 1990, तो वहाँ उसमें भी आपने सेल डिक्लेयर की हुई है, तो वहाँ मंथली है और 12 मंथ की आप सेल डिक्लेयर करें और उसमें से देखें कि वहाँ कितनी है।
वहाँ आपकी इंक्लूसिव सेल टैक्स भी है, एक्सक्लूसिव भी है, तो दोनों को आप चेक करें कि वहाँ और यहाँ क्या डिफरेंसेस है। तो वहाँ सेल रिकॉग्नाइज करने की मेथडोलॉजी सेल टैक्स में ऑल टुगेदर डिफरेंट है। वहाँ आप अक्रूवल या रिसीव विच एवर इज अर्लियर, वो डिफरेंट टाइमिंग में डिफरेंट होती रही है। कभी शुरू में ये था कि रिसीट या सेल एक्चुअल से डिलीवरी विच एवर अर्लियर, कभी उन्होंने कहा जस्ट सेल, तो अब फिर मेरा ख्याल ला चेंज हो गया, अब भी जो अर्लियर होगी। इट मीन वहाँ एडवांस जो है वो भी रिसीव तस्वर किया जाता है। तो इसलिए आप उसको भी टोटल लें, टोटल लेके फिर वहाँ सेल ऑफ गुड्स होंगी, यहाँ सेल ऑफ गुड्स भी है, सर्विसेज भी है, तो सारी रेवेन्यू आ सकते हैं। वो लेटर ऑन हम टर्नओवर की डेफिनेशन भी देखते हैं। तो अभी हम देख लें कि आपने करना क्या है, उसके मुताबिक फिर आगे देखते हैं कि क्या क्या उसमें होगा। तो सर्विसेज जो है सेल ऑफ गुड्स में नहीं है, तो इसलिए सेल टैक्स एक्ट जो है वो गुड्स को डील करता है। पीआरए में सर्विसेज हैं, फिर ये भी देखना है कि वो सर्विसेज टैक्सेबल हैं कि नहीं। तो यहाँ तो सारी आनी है, टैक्सेबल भी, नॉन टैक्सेबल भी, जो जिस पे सेल टैक्स नहीं भी लगता वो भी आनी, जो पीआरए नहीं लगता वो भी आनी, जो लगता है वो भी आनी। तो इसलिए उसको आप पीआरए या प्रोविंशियल जितनी भी आपके टैक्सेस हैं, वहाँ जो भी सर्विसेज की आपने सेल डिक्लेयर की है उसको भी टोटल करें, और उसकी मेथडोलॉजी, क्योंकि वहाँ चार्जेबिलिटी, जो पेएबिलिटी और चार्जेबिलिटी है उसकी मेथडोलॉजी और है, उसको रिकंसाइल करें। उसमें से एडवांसेस ये वो निकालें, अक्रूवल बेसिस पे लाएं और फिर इसके साथ रिकंसाइल कर लें। तो तीनों चीज़ें आप, एक बैंक वाला रिकंसाइल करें, एक आप सेल टैक्स रिटर्न से रिकंसाइल करें, और एक अपने अकाउंट से भी रिकंसाइल करें। आप रिटर्न यहाँ डिक्लेयर कर रहे हैं तो इसको उससे भी आप रिक्वायर करें। जो अकाउंट्स में लेजर है, लेजर के बाद दूसरी चीज़ें हैं अकाउंट, एक तो वहाँ समरी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसमें लेजर में क्या है और प्रॉपर रिपोर्टिंग में क्या है, तो उसमें आपकी सेल टैक्स रिटर्न, डिस्काउंट, ये भी और बहुत सी चीज़ें होंगी। तो पूरे पार्टी वाइज भी लेजर होंगे, तो उनको रिकंसाइल वहाँ से भी चेक कर लें कि उससे भी मिलता है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो आपको चेक करनी चाहिए, वो ये है कि आपकी विद होल्डिंग भी होती है। जब आप सप्लाई करते हैं या सर्विसेज रेंडर करते हैं तो कोई आपकी विद होल्डिंग भी करता है, तो आपका MIS जो है वहाँ से भी आपको चेक करके रिकंसाइल करना है कि वो सेल जो है जिसमें विद होल्डिंग हुई है और टैक्स भी आपने क्लेम करना है, वो इसका पार्ट है कि नहीं। तो ये 4-5 चीज़ें जो है आपने चेक करके फिर अपनी सेल जो है यहाँ रिपोर्ट करनी है, यहाँ वाली रिपोर्ट करनी है। तो आपके अकाउंट्स में जो ग्रॉस सेल होगी उसमें से यूजुअली सेल टैक्स लेस होता है। तो यहाँ कुछ चीज़ें और भी हैं जो अदरवाइज, डिस्काउंट तो वैसे ही वहाँ भी लेस होता है और सेल टैक्स भी होता है। कुछ चीज़ें इसमें जैसे ब्रोकरेज है, कमीशन है, ये वहाँ डिडक्ट नहीं होती, ये अलहदा मैनेजमेंट जो सेलिंग एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस मैनेजमेंट वाले वो, या एडमिनिस्ट्रेटिव और सेलिंग एक्सपेंसेस या डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस है, वहाँ उसमें ग्रुपिंग होती है इसकी। तो यहाँ आपकी, जब आप यहाँ जैसे लेस करेंगे, जैसे फ्रेट आउटवर्ड है, फ्रेट आउट मीन जब आपने सेल की है, सेल पे जो आपने फ्रेट दी है, परचेज वाले को हम परचेज फ्रेट इन कहते हैं। अब आप कोई चीज़ परचेज करेंगे तो फ्रेट इन कहेंगे। इस तरह डिस्काउंट इन भी, आउट भी इसी तरह कहते हैं। डिस्काउंट सेल पे होगा तो परचेज इन, परचेज वाला इन होगा, डिस्काउंट मिला है तो सेल आउट होगा। इस तरह फ्रेट इन और आउट जो है वो डील करता है कि सेल पे है या परचेज पे है। तो यहाँ नेट सेल कैलकुलेट करते वक्त एक्सक्लूडिंग सेल टैक्स और फेडरल एक्साइज, यहाँ यूजुअली आपकी बुक वहाँ रिकॉर्ड में देखेंगे जो ऑडिटेड अकाउंट है तो वहाँ सेल टैक्स या फेडरल एक्साइज तो लेस होगी, लेकिन बाकी चीज़ें ये डिस्काउंट, ऑटो पे डिस्काउंट की भी 2-3 कैटेगरी होती हैं। एक ट्रेड डिस्काउंट होता है, वो प्राइस लिस्ट में ही लेस होता है। एक कैश डिस्काउंट होता है, क्वांटिटी डिस्काउंट होता है कि आपने पेमेंट अर्ली कर दी तो आपको कोई डिस्काउंट कर दिए, या क्वांटिटी एक के साथ दूसरी दे दी तो वो वाला डिस्काउंट होता है, तो उसकी प्राइस होती है। तो वो वाले डिस्काउंट डिफरेंट कैटेगरी है। तो डिस्काउंट उसमें से यहाँ लेस करना है। फ्रेट आउटवर्ड जो मैनेजमेंट एक्सपेंस में या एडमिन सेलिंग में है, डिस्ट्रीब्यूशन में, वहाँ से वो लेस करना है। फिर आपने ब्रोकरेज कमीशन है तो वो लेस करना है। तो यहाँ फिर आपकी ये लेस करेंगे तो नीचे इसकी डिटेल भी है फिर, ठीक है। ये लेस करके ग्रास आना है, तो ग्रास मस्ट सेल सर्विसेज दोनों को ऐड करके इधर लिखना है। और ग्रास एक्सपो, इसकी फर्दर क्लासिफिकेशन भी आपने करनी है कि हमको लोकल कितनी सेल्स हैं और एक्सपोर्ट सेल या सर्विसेज आपकी कितनी है करके। तो फिर आपने सेलिंग एक्सपेंस है, फ्रेट, ये लेस करनी, ये सब आप लेस करेंगे। ये फार्म कमीशन, ड्रॉबैक, ये सारे हैं, तो ये सारे लेस करेंगे तो वो टोटल बनेगा। तो अब एक तो जो है कि जो आपने सेल डिक्लेयर की है इन द अकाउंट्स, वो सेल की फिगर और होगी। यहाँ जो ऊपर आ रही है यहाँ फिगर और होगी,
क्योंकि ये उससे मैच नहीं करेगी, क्योंकि वहाँ एक्सपेंस सेपरेट हेड में रिपोर्टेड है, वहाँ जाके टोटल एक्सपेंस में ऐड हो गए, वहाँ से लेस होते हैं। अब जब ये मिसमैच होगी तो वहाँ जो आपने एक्सपेंस कर रहे हैं वो भी कम हो जाएंगे, क्योंकि आपने वहाँ से एक्सपेंस ट्रांसफ़र यहाँ कर दिए हैं, तो वहाँ जो टोटल है एडमिन सेलिंग का वो कम हो जाएगा, क्योंकि वो आपने इधर सेल में से लेस कर दिए। तो वहाँ आप जब एडमिन सेलिंग में आप एक्सपेंस लिखेंगे तो ये वाली फिगर दोबारा नहीं वहाँ लिखेंगे, इवन दो वो एडमिन मैनेजमेंट पे होंगे, लेकिन उसका टोटल जो है ये लेस करके वो बाद में आएगा। लेकिन अल्टीमेट इम्पैक्ट जो है, जो अल्टीमेट हमने देखा है वो नेट प्रॉफिट जो है बिफोर टैक्स वो वही होगा। तो यहाँ प्रेजेंटेशन आपने पहले इसकी कैलकुलेशन करनी है। इसमें लोकल सेल, इंपोर्ट अलहदा सेपरेट, और एडमिन सेलिंग के भी ये सारे सेपरेट आपने डालें, सारे ड्यूटी, ड्रॉबैक, कमीशन, इसके अलहदा हेड हैं, कोड भी अलहदा है, यहाँ अलहदा डाल देंगे और उठाएंगे आप वो प्रॉफिट एंड लॉस से वहाँ से ही, और अकॉर्डिंगली आप फिर ये एरिया आपका जो है ये मुकम्मल हो गया सेल या टर्नओवर का। टर्नओवर वैसे डिफाइंड भी है, अगर सेक्शन 2 में देखें हम, टर्नओवर में 70 है, टर्नओवर एज डिफाइंड सेक्शन 3 और सेक्शन 13। तो 13 को देख ही लें, ताकि क्योंकि चलते चलते सारी चीज़ें देखते चलें। टर्नओवर मीन्स ग्रॉस सेल और ग्रॉस रिसीट, एक्सक्लूसिव सेल टैक्स एंड फेडरल एक्साइज ड्यूटी or any trade discount shown on the invoice or bill derived from the sale of goods, are also excluding any amount taken as a deemed income and is assessed as a final discharge of tax liability for which tax is already paid or payable। तो इसमें से जो आप फाइनल डिस्चार्ज वाली है वो सेल सर्विसेज निकाल देंगे, बाकी वाली सेल ऑफ गुड्स या सेल ऑफ सर्विसेज जो होंगी, और लेस ऑफ टैक्सेस, एडजस्टेबल टैक्सेस ड्यूटी शूटी होंगी वो लेस करेंगे और डिस्काउंट लेस करेंगे। और इसमें से वैसे वो कमीशन वाला वो इसमें नहीं लिखा हुआ, क्योंकि वहाँ प्रेस्क्राइब फॉर्म में जो है ब्रोकरेज कमीशन वगैरह लिखा हुआ है, तो इसीलिए हम उसको फॉलो कर लेंगे। नेक्स्ट है ग्रॉस रीट फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट कवर्ड बाय फाइनल डिस्चार्ज। नेक्स्ट क्या है इसमें, कंपनी शेयर ऑफ अमाउंट स्टेटेड अबव ऑफ एनी एसोसिएट एओपी फॉर विच कंपनी इज ए मेंबर। तो ये भी एक टर्नओवर का ही पार्ट है, अगर किसी एओपी में कंपनी मेंबर है, उसमें शेयर ऑफ प्रॉफिट आ रहा है, तो वो भी इसका पार्ट बनेगा। क्लियर, ये डिफाइंड है। लेकिन क्योंकि वहाँ वापस आए, वापस बेटा रिटर्न ऊपर, यहाँ वर्ल्ड भी वैसे टर्नओवर नहीं है, यहाँ नेट रेवेन्यू है, क्योंकि ये प्रेस्क्राइब है रिटर्न का फॉर्म, तो टर्नओवर एग्जैक्टली वो मीने इधर नहीं हम ला सकते। तो यहाँ उन्होंने नेट रेवेन्यू का एक प्रेस्क्राइब दिया है, तो नेट रेवेन्यू को फिर आगे उन्होंने डिस्क्राइब भी कर दिया है कि किस चीज़ का टोटल है। तो इसलिए इसके मुताबिक हमने ये, क्योंकि हम पे ये बाइंडिंग है, यही फॉर्मेट जो है प्रेस्क्राइब अकाउंट से भी लेके हमने ये चीज़ें इसी तरह लेस करके इसी तरह प्रेजेंट करनी। नेक्स्ट बेटा, इंपोर्टर को एक्सपोर्ट को इसको भी सेग्रीगेट करके और रिलेटेड जो है वो अपने। नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो कास्ट ऑफ सेल और सर्विसेज है। तो सबसे पहले है स्टॉक। तो सबसे पहले स्टॉक के लिए, स्टॉक भी जिस तरह हमने कहा कि सेल यहाँ से वहाँ से देखें, तो सेल टैक्स में भी हर महीने में स्टॉक का भी लेक्चर होता है, तो वहाँ भी आप देख लें कि वहाँ स्टॉक कितना है 30 जून वाला, क्योंकि ये 30 जून वाला है, और इसको देखें स्टॉक कितना है, फिज़िकली स्टॉक कितना है, और वहाँ जो दिया स्टॉक की मैन्युफैक्चरिंग में 4-5 कैटेगरी होती हैं, जबकि ट्रेडिंग में यूजुअली एक कैटेगरी होती है। तो रॉ मटेरियल का स्टॉक हो सकता है, कंपोनेंट का हो सकता है, वर्क इन प्रोसेस हो सकता है, फिनिश गुड्स जो है वो उनका स्टॉक हो सकता है। तो 4-5 स्टॉक जो है मैन्युफैक्चरिंग में उसकी आप देखेंगे। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक हम देखेंगे, और इसके लिए सेक्शन आपका 35 है। 35 में वैसे डिफाइंड भी है स्टॉक क्या होता है। स्टॉक वैसे अनसोल्ड चीज़ को कहते हैं या अनयूज्ड को कहते हैं। पहले स्टॉक की डेफिनेशन लेते हैं, फिर 35 को देखते हैं, फिर वहाँ मेथड भी हैं, मेथड ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ कास्ट भी हैं। स्टॉक इन ट्रेड पहले 2 में देख लें, सेक्शन 2 में भी डिफाइंड होगा स्टॉक इन ट्रेड। वो यही होगा कि एज
in section 35. सेक्शन 2 का सब सेक्शन होगा स्टॉक इन ट्रेड। स्टॉक इन ट्रेड के यूजुअली डिफरेंट इसको वर्ड असाइन, जैसे इन्वेंट्री भी इसी को कहते हैं, इन्वेंट्री कह लें, स्टॉक इन ट्रेड कह लें। तो अल्टीमेट मीन्स जो चीज़ अनकंज्यूम्ड या अनसोल्ड है, अनसोल्ड है बट दैट इज रेगुलरली बीइंग पार्ट ऑफ द बिजनेस। जो रेगुलर नहीं है, इरेगुलर है, नॉन रिकरिंग है, वो नहीं, जैसे फिक्स एसेट है, वो स्टॉक इन ट्रेड नहीं है। जो इन्वेस्टमेंट ऑफ फॉर द पर्पज ऑफ सेल, आप जो चीज़ फॉर द पर्पज ऑफ सेल है और ड्यूरिंग द एट द ईयर एंड वो अनसोल्ड है, ऐसे समझें। जो फॉर द पर्पज ऑफ सेल या फॉर द पर्पज ऑफ कंजम्पशन है, लेकिन ड्यूरिंग द ईयर वो कंज्यूम अनकंज्यूम रह गई या इन प्रोसेस रह गई, और या फॉर्म पार्ट ऑफ फिनिश गुड्स नहीं बनी, या फिनिश गुड बन गई और सोल्ड नहीं हुई एट द ईयर ड्यूरिंग द ईयर टू बी कैरी फॉरवर्ड इन द नेक्स्ट ईयर, पर्पज उसका सेल ही है। तो अनसोल्ड या अनकंज्यूम जो है वो चीज़ जो है वो आपकी, उसको हम इन्वेंट्री कह लें, उसको आप स्टॉक भी कह सकते हैं। स्टॉक इन ट्रेड मतलब ट्रेड का पार्ट है। अब इसको हम यूजुअली फिक्स, जो आपके करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी होते हैं उनको वर्किंग कैपिटल एसेट भी कहते हैं, उनको फ्लक्चुएटिंग एसेट भी कहते हैं। तो वो रकरिंग नेचर के होते हैं और वर्किंग साइकिल में, एक साइकिल में वो रहते हैं। तो इसलिए वो वाले जो एसेट्स होते हैं, तो उसमें से जो गुड्स हैं, टेजिबल गुड्स हैं, या बाद दफा सर्विसेज का भी स्टॉक होता है जो उस पर कास्ट हुई, तो वो वाले जो अनसोल्ड, अनयूज्ड, इन प्रोसेस हैं, जो फॉर्म पार्ट ऑफ दैट साइकिल हैं, तो वो आपके स्टॉक इन ट्रेड है। तो स्टॉक इन ट्रेड की कास्टिंग कैसे करनी है, स्टॉक इन ट्रेड एट डिफाइंड सेक्शन 35। तो 35 में अब हम देखते हैं कि स्टॉक क्या क्या है। तो स्टॉक की वहाँ कास्ट ऑफ सेल की कंप्यूटेशन भी है और मेथड ऑफ कंप्यूटेशन भी हैं। तो काउंटिंग में एक अलहदा मेथडोलॉजी है, यहाँ पे भी वही मेथडोलॉजी है। यहाँ लॉ कोई अपना रूल फ्रेम करता है और बताता है कि ये टैक्स लॉ कहता है कि ये फॉलो करें, तो फिर हमने वो फॉलो कर। हो सकता है यहाँ कास्टिंग मेथड और हो, आपने अडॉप्ट किया हो, और जहाँ जो अकाउंट्स बने वहाँ और हो, यहाँ वैल्यूएशन और हो, वहाँ और हो, तो फिर आप वो रिकनसाइल कर सकते हैं। फॉर द पर्पज ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ पर्सनस इनकम चार्जेस टैक्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस फॉर ए टैक्स ईयर द कास्ट ऑफ स्टॉक in trade disposed of by the person in the year shall be computed in accordance with the formula। तो इसे क्या मुराद है? इसे मुराद ये कास्ट ऑफ सेल है कि कास्ट ऑफ सेल आपने इस तरह कैलकुलेट करनी, ठीक है। ये पहला पार्ट जो है ये कास्ट ऑफ जो डिस्पोज ऑफ किया है स्टॉक इन ट्रेड ड्यूरिंग द ईयर, उसकी कास्ट ऑफ सेल आपने कैसे कैलकुलेट करनी है। तो ये ऐसे ही है कि ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस क्लोजिंग स्टॉक लेस तो कास्ट ऑफ सेल। ठीक वही फार्मूले को ए प्लस बी, ए इज द ओपनिंग वैल्यू ऑफ स्टॉक इन ट्रेड फॉर द ईयर, बी इज द कास्ट ऑफ स्टॉक इन एक्वायर्ड ड्यूरिंग द परचेज वगैरह जो मैन्युफैक्चरिंग है वो है। उसके बाद सी इज द क्लोजिंग स्टॉक इन ट्रेड, तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेज मैन्युफैक्चरिंग डायरेक्ट कास्ट माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज कास्ट ऑफ सेल। तो वो जो फार्मूला जनरल काउंटिंग में होता है वही है, ठीक है। उसके बाद ओपनिंग स्टॉक को भी उन्होंने अलहदा किया है, केवल ओपनिंग स्टॉक ऑफ द ट्रेड ऑफ पर्सन फॉर ईयर, ओपनिंग स्टॉक को अलहदा डिफाइन किया। जब ओपनिंग डिफाइन कर दिया तो क्लोजिंग ओपनिंग जो है ऑटोमेटिक क्लोजिंग होगा। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ द ट्रेड शैल बी द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ द पर्सन स्टॉक इन ट्रेड एट द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर और वेयर ए पर्सन कमेंस टू कैरी ऑन ए बिजनेस इन द ईयर ए फेयर वैल्यू ऑफ द स्टॉक इन ट्रेड एक्वायर्ड बाय द पर्सन प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। तो पहला तो पिछले साल वाला ओपनिंग है, अगर फर्स्ट ईयर ही आपने किया है तो आपने घर से भी कोई चीज़ लाए बेचने के लिए तो वो भी उसकी फेयर वैल्यू जो होगी, या अदरवाइज आपने लिया है बिजनेस कमेंसमेंट करने से पहले तो वो आपका जैसे रजिस्ट्रेशन से पहले वाला स्टॉक आपने को दिया है तो वो वाला होगा। द फेयर वैल्यू ऑफ द स्टॉक रेफर टू इन सबसेक्शन शैल बी डिटरमिन एट द टाइम ऑफ स्टॉक इन ट्रेड इज वेंचर इनटू बिजनेस। तो जब आप बिजनेस में लाए हैं, घर से लाए हैं या परचेज किया है तो उसको जो फेयर वैल्यू है वो उसको कैलकुलेट कर देंगे। क्लोजिंग वैल्यू ऑफ पर्सन स्टॉक इन ए टैक्स फॉर द टैक्स ईयर शैल बी लोअर ऑफ द कास्ट और वैल्यू इन ट्रेड एट द एंड एट द ये वैल्यूएशन है कि साल के बाद आप NRV या नेटलाइजेबल वैल्यू जो कास्ट जो होगी जो लोअर होगी उस पर लेंगे और डिफरेंशियल ऑफ कास्ट ऑफ सेल को चार्ज कर देंगे। तो अब पर्सनल अकाउंटिंग फॉर इनकम चार्ज अंडर द इनकम ऑन ए कैश बेसिस में कंप्यूट द स्टॉक इन ट्रेड ऑन द प्राइम कास्ट मेथड। तो प्राइम कास्ट में हम कहते हैं कि जो डायरेक्ट कास्ट हैं,
प्राइम कास्ट में डायरेक्ट आपकी कास्ट जो है रॉ मटेरियल कास्ट और जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग में डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग है उसको हम प्राइम कास्ट कहते हैं। तो दो कास्ट जो है उसको आप लगा के जो कैश पेमेंट की है वो प्राइम कैश बेसिस होगी। कंप्यूट द स्टॉक एंड ट्रेड ऑन द प्राइम कास्ट मेथड और अब्जॉर्प्शन कास्ट मेथड। तो अब्जॉर्प्शन कास्ट में तीनों कास्ट हैं, उसमें आपके डायरेक्ट लेबर भी है, डायरेक्ट आपका डायरेक्ट मटेरियल भी है और डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कास्ट भी है। तीनों को मिलाएं तो वो अब्जॉर्प्शन कास्ट बनती है। एंड ए पर्सन अकाउंटिंग फॉर सच इनको ऑन एक्रूवल बेसिस शैल कंप्यूट द पर्सन कास्ट ऑफ स्टॉक ऑन द अब्जॉर्प्शन कास्ट मेथड। तो कैश में दोनों अडॉप्ट किए जा सकते हैं और अक्रूवल में अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड होगा। वेयर ए पर्टिकुलर आइटम ऑफ स्टॉक इन आर रेडली आइडेंटिफाइबल पर्सन मे अकाउंट फॉर द ऑन द फर्स्ट इन फर्स्ट आउटपुट मेथड। अगर जैसे गाड़ियाँ शाड़ियाँ चीज़ आइडेंटिफाइबल है तो वो उस सिचुएशन में आप जो पहले चीज़ आई है पहले बिकेगी, हो सकता है उनकी प्राइस डिफरेंस है। तो आपकी 2 लाख की गाड़ी आई है, फिर 3 की, 4 की, 5 की, तो जो पहले आई है उसकी हम कास्ट पहले चार्ज करें। जो क्लोजिंग स्टॉक होगा वो लेटेस्ट कास्ट पे हम रखेंगे और कास्ट ऑफ गुड्स को कौन सा चार्ज करेंगे, ओल्डेस्ट कास्ट चार्ज करेंगे और स्टॉक लेटेस्ट कास्ट पे होगा। तो ये FIFO मेथड कर सकते हैं, एवरेज भी कर सकते हैं। तो एवरेज गाड़ियाँ 10 गाड़ियाँ तो 10 गाड़ियों में डिफरेंट प्राइस हो सकती है। टोटल करेंगे कि 10 की इतनी है, 4 बिकी हैं तो एवरेज कास्ट चार्ज होगी और एवरेज पे स्टॉक होगा। क्लियर? इस तरह स्टॉक वैल्यू मेथड में भी चार्ज ओनली विद द रिटन परमिशन ऑफ द कमिश्नर एंड कास्ट डायरेक्शन। इन दिस आगे मेथड जो है या वो सारी चीज़ें डिफाइंड है। Absorption cost of math made generally accepted concept under which the cost of atom of stock is sum of the direct material cost and direct labor cost and factory overhead। तो ये है अब्जॉर्प्शन कास्ट में तीनों कास्ट शामिल है। आपकी मटेरियल कास्ट भी डायरेक्ट कास्ट है और लेबर कास्ट भी है और मैन्युफैक्चरिंग कास्ट या फैक्ट्री कास्ट कह लें वो भी डायरेक्ट कास्ट। इसमें तीनों को मिलाएंगे तो अब्जॉर्प्शन कास्टिंग है। प्राइम पहली 2 को लेंगे तो वो आपकी एवरेज कास्ट तीनों को मिलाएंगे तो इसमें तीनों का एवरेज कर लेंगे तो उस एवरेज होगी। उसमें डायरेक्ट लेबर कास्ट, लेबर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेड जो प्रोडक्शन होगा उनकी जो लेबर पे करेंगे वो है। जो इनडायरेक्टली मैनेजमेंट वाले हैं वो शामिल नहीं करेंगे। नीचे बेटा इधर डायरेक्ट मटेरियल कास्ट जो डायरेक्ट कंपोनेंट बनता है फिनिश प्रोडक्ट का उसको डिस मटेरियल कहेंगे। मटेरियल दैट बिकम इंटीग्रल पार्ट ऑफ स्टॉक मैन्युफैक्चरिंग प्रोड्यूस और विच आर कंज्यूम इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन प्रोसेस। फैक्ट्री ओवरहेड कास्ट मीन टोटल कास्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्शन अदर दैन डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट मटेरियल। फर्स्ट इन्फॉर्म मीन जनरली एक्सेप्टेड अकाउंट्स अंडर विच द वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक इन ट्रेड इज बेस्ड ऑन द असम्पशन दैट स्टॉक इज सोल्ड इन द ऑर्डर ऑफ इट्स एक्विजिशन। जो पहले आएगा पहले बिकाए समझे, बेशक बाद वाली गाड़ी पहले भेज दें आप, लेकिन वो समझा जाएगा पहले कास्ट उसको पहले वाली चार्ज होगी। जो फर्स्ट आया फर्स्ट बिकेगा, जो सेकंड आया सेकंड बिकेगा। इस तरह प्राइम और भी FIFO है, LIFO है, एवरेज है, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड है, बहुत सारे हैं, बहुत सारे मेथड है। उनमें से उन्होंने 4-5 जिक्र किया। प्राइम मेथड है मेथड जनरली एक्सेप्टेड अकाउंट प्रिंसिपल अंडर विच द कास्ट ऑफ स्टॉक इज सम ऑफ द डायरेक्ट मटेरियल कास्ट, डायरेक्ट लेबर कास्ट एंड वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड। तो ये प्राइम में स्टॉक इन ट्रेड मीन्स एनीथिंग, ये इंपॉर्टेंट है हमने जिसके लिए हमने टोटल सारे मेथड देखें। स्टॉक इन ट्रेड मीन एनीथिंग प्रोड्यूस मैन्युफैक्चर परचेज और अदरवाइज एक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग सेल और एक्सचेंज एंड एनी मटीरियल सप्लाई टू बी कंज्यूम इन प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चर बट डज नॉट इंक्लूड स्टॉक एंड शेयर। वो स्टॉक एंड शेयर इसमें शामिल नहीं है। तो ये वाले जो हैं तो वेरिएबल ओवरहेड कास्ट मीन एनी फैक्ट्री कास्ट विच directly changes in value of such trade in stock and produce। तो it means इन्वेंट्री कहते हैं जो चीज़ भी आपने प्रोड्यूस मैन्युफैक्चरिंग की है या बाय की है फॉर द पर्पज ऑफ सेल। तो फॉर विद रिस्पेक्ट टू टैक्स ईयर या अकाउंटिंग जो एक उसके 2 पार्ट बनेंगे, एक सोल्ड और अनसोल्ड। जो अनसोल्ड होगा वो क्लोजिंग या ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक होगा। जो सोल्ड होगा उसको हम कहेंगे कास्ट ऑफ सेल। तो टोटल एट द टाइम ऑफ बाइंग वो स्टॉक एंड ट्रेड होगा या इन्वेंट्री होगी। अब साल के एंड पे हम देखेंगे जो बिक गया दैट इज कास्ट ऑफ सेल। वो एक्सपायर्ड पोर्शन ऐसे एक्सपेंस का भी ऐसे ही होता है, एक एक्सपायर्ड पोर्शन होता है, एक अनएक्सपायर्ड पोर्शन है। अगर आपने कोई 3 साल का रेंट दे दिए तो एक्सपेंडिचर के भी 2 पार्ट बनते हैं, एक एक्सपायर्ड जो यूज़ हो गया, एक आपका दूसरे को हम वो एडवांस उसको कह सकते हैं या प्रीपेड कह सकते हैं उसको, डिफरेंट। इसी तरह स्टॉक का भी कास्ट ऑफ सेल के भी 2 पार्ट बनते हैं, एक यूज्ड परटेन टू टैक्स ईयर, एक अनयूज्ड या अनसोल्ड।
इसी तरह एक्सपेंस के भी हम हर जगह इसी तरह प्रीपेड और पेड, उसमें से प्रीपेड वो होगा जो फ्यूचर के लिए, और एक्सपायर्ड पोर्शन जो होगा वो क्रूड या एक्सपेंस क्रूड ईयर होगा। तो इसी तरह ये वाला स्टॉक जो है वो इन्वेंट्री एट द, इसके 2-3 मेथडोलॉजी हो सकते हैं। एक मेथडोलॉजी हो सकती है कि जब आपने परचेज़ किया है तो उस वक्त आप इसको परचेज़ ही रिकॉर्ड करें और साल के एंड पे फिर आप उसको मेजर करेंगे और उसमें से देखेंगे जो परचेज़ किया है या मैन्युफैक्चरिंग किया है। ट्रेडिंग में अगर परचेज़ करके आप सेल करते हैं तो साल के एंड पे आप देखेंगे इस परचेज़ में से कितना अनसोल्ड है, तो उसको क्लोजिंग स्टॉक में आप ट्रांसफ़र कर देंगे। या दूसरा मेथडोलॉजी इन्वेंट्री मेथड है कि सारे को पहले एसेट रिकॉर्ड करेंगे, इन्वेंट्री करेंगे, जो साल के एंड पे जितना रिमेनिंग रह जाएगा वो इन्वेंट्री होगी, जो बिका होगा वो कॉस्ट ऑफ सेल में चार्ज कर सकते हैं। तो कोई भी मेथडोलॉजी अडॉप्ट हो सकती है। तो मेथडोलॉजी कॉस्टिंग मेथड अलग है, वैल्यूएशन मेथड अलग है। कॉस्टिंग के लिए FIFO, LIFO, एवरेज, स्पेसिफिक डेरिवेशन मेथड है। वैल्यूएशन के लिए एक ग्लोबल वैल्यूएशन भी होती है और क्लास वैल्यूएशन भी होती है, इंडिविजुअल मेथड वैल्यूएशन भी होती है। तो अल्टीमेटली वैल्यूएशन आपने करनी है नेट कॉस्ट या नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर, उस पे क्लोजिंग को आपने मेजर करना है। तो अब स्टॉक को हम जो भी आपने पिछले साल की रिटर्न को देखना है कि वहाँ क्लोजिंग स्टॉक रॉ मटेरियल का, फिनिश गुड्स का, स्टोर स्पेयर्स का या आपका वर्क इन प्रोसेस का क्या था, क्या ओपनिंग में आपने वही लिखा है। तो पहले पिछले साल का क्लोजिंग इस साल का ओपनिंग होगा, तो आपने उस पिछले साल की रिटर्न से भी चेक करना है, अकाउंट से भी चेक करना है कि क्या स्टॉक में कोई डिफरेंस है तो नहीं है, कोई ड्यूरिंग ईयर ओपनिंग एडजस्टमेंट रिटेनर में प्रॉफिट में तो नहीं हुई, तो उसको आपने चेक करना है वहाँ से। फिर ओपनिंग स्टॉक जो है उसकी फिगर आपने डालनी है, नहीं तो अदरवाइज डिफरेंस होगा तो आपको नोट दे देंगे उधर तो ओपनिंग स्टॉक ये था, यहाँ आपने ये क्लोजिंग उधर ये था, यहाँ ओपनिंग आपने कम लिख दिया या ये ज़्यादा लिख दिया है। तो इसलिए डिफरेंस को रिकनसाइल करें या ऑडिशन करेंगे सेक्शन 111 में या किसी और सेक्शन में। क्लियर जी। तो फर्स्ट स्टॉक जो है वो, फिर स्टॉक को आपने एक तो पिछले साल की रिटर्न से, पिछले अकाउंट से और फिर अपने करंट अकाउंट से, फिर आपने स्टॉक को चेक करना है विद द सेल टैक्स रिटर्न। उसका जो 30 जून वाला आपकी रिटर्न फाइल की है जुलाई में, उसमें आपने देखना है स्टॉक कितना है। तो वहाँ से भी कह सकते हैं कि यहाँ डिफरेंसेस है। क्योंकि आपने शुरू में कहा था कि आपने सेलर्स रिटर्न से भी स्टॉक को देखना है, जी मैं अभी भी कहा है एनेक्सर एफ की जो वैल्यू है जी, मैं वही मैं ये सेम आनी चाहिए, कोई ज़रूरी नहीं है, ये मैटर ऑफ रिकॉन्सिलेशन है। एक तो ये है कि वहाँ स्टॉक जो है हो सकता है FIFO पे ना हो, LIFO पे हो, एवरेज पे हो, यहाँ FIFO आपने अडॉप्ट किया हो। नहीं 2-3 डिफरेंस आपने डिफरेंस रिकनसाइल करना है। एक तो वहाँ आपने जो सेल परचेज है, परचेज का मैकेनिज्म डिफरेंट है। वहाँ आप 7 महीनों में 6 महीनों तक इनपुट परचेज रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, यहाँ आपने उसी महीने में ही करना है। तो वो डिफरेंसेस आपका आ सकता है। जो आपने अदरवाइज परचेज किया है वहाँ परचेज में रिकॉर्डेड नहीं है, तो वो स्टॉक में भी नहीं, इसलिए एक तो उस चीज़ को अलहदा करें। ठीक है, वहाँ से अब वहाँ आपका मेथडोलॉजी परचेज की डिफरेंट है, परचेज क्लेम करने की और इनपुट की, यहाँ ऑल टुगेदर डिफरेंट है। तो फिर एक तो फर्स्ट इसको आप रिकनसाइल करें कि वहाँ कितने महीनों में आपने रिकॉग्नाइज किया है, जो अगले इस साल की है और अगले सालों में अगले साल आपकी चली गई है, तो उसको आप अलहदा करें। फिर दूसरा परचेज के आप कास्टिंग डिफरेंस हो सकते हैं, यहाँ आपने परचेज की वैल्यू और रिकॉर्ड की हुई है, यहाँ आपने इंपोर्ट की है तो यहाँ पेमेंट आपने और की है, उधर वैल्यू और है, उधर तो जो कस्टम वैल्यूएशन है उस पर है और अपलोड खुद किया हुआ है, यहाँ ऑल टुगेदर आपने इनवॉइसिंग और है, पेमेंट और है, यहाँ एक्चुअल बेसिस पे। तो एक इसको आपने रिकनसाइल करना, इसलिए क्योंकि परचेज स्टॉक का पार्ट बनेगी ना, तो कास्टिंग डिफरेंस एक परचेज का और इस रिकग्निशन के डिफरेंस है, दूसरा फिर स्टॉक कॉस्टिंग के डिफरेंसेस है। तो वो स्टॉक कॉस्टिंग के FIFO है, LIFO है, एवरेज है, यहाँ नेट रियलाइजेबल वैल्यू पहले आपने कॉस्ट कैलकुलेट की है, FIFO, LIFO, एवरेज, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड, उस पर फिर रियलाइजेशन के भी मेथड हैं आगे 3, उसके बाद फिर आपने नेट किया हुआ है, तो नेट करके आपने रिपोर्ट किया हुआ है। तो इन सारे जो डिफरेंसेस हैं और वहाँ आपका फिर रिकग्निशन की मेथडोलॉजी भी डिफरेंट है। सेल परचेज जो है आपका वो जो आपने एडवांस दिया है उस पर भी रिकग्नाइज हो गया, जो एडवांस आपने पैसे दिए हैं वो भी परचेज रिकग्नाइज होगी। यहाँ एडवांस तो एडवांस नहीं, यहाँ तो अक्रूवल सिस्टम है। तो इसलिए वो सारे डिफरेंसेस जो टैक्सेशन डिफरेंसेस हैं बिटवीन द लॉ
लॉ में जो मेथडोलॉजी ऑफ रिकग्निशन ऑफ आपका चार्जेबिलिटी है, मेथड ऑफ चार्जेबिलिटी एसेसिबिलिटी है, वो डिफरेंट है दैन द इनकम टैक्स। और कंपनी लॉ में रिकग्निशन ऑफ सेल, मेजरमेंट मेथड जो है वो अक्रूवल, मैचिंग, प्रूडेंट, वो ऑल टुगेदर डिफरेंट इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। वहाँ आपने सेल या एक्सपेंस उन मेथडोलॉजी से रिकग्नाइज किए हैं, कॉस्टिंग के भी वहाँ डिफरेंट मेथड्स हैं, आपने उनको फॉलो किया हुआ है, उसके मुताबिक है। टैक्स लॉ में अपने हैं, सेल टैक्स में अपने। तो अब क्योंकि कंपनी ने सारा कुछ अकाउंट में रिकग्नाइज किया हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ कंपनी एक्ट एंड इंटरनेशनल अकाउंटिंग सेक्शन आपका 174, रीड विद रूल जो 32 है, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था। तो आपके अकाउंट सारे उसके मुताबिक बने हुए हैं, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के मुताबिक। यहाँ FIFO LIFO के मेथड अलहदा दिए गए हैं। वहाँ जो रिकग्निशन चार्जेबिलिटी है, क्लेम है इनपुट का या परचेज का, वो ऑल टुगेदर डिफरेंट है। तो क्योंकि परचेज में से स्टॉक निकलना है, ओरिजिनेट होना है, जो अनसोल्ड परचेज है या मैन्युफैक्चरिंग है तो उसके मुताबिक निकलना है, तो उसके अकॉर्डिंगली फिर आपके डिफरेंसेस आएंगे। डिफरेंसेस ऑलवेज देयर, ज़रूरी नहीं कि सेम हो, और दैट इज़ मैटर ऑफ रिकन्सिलेशन। जैसे हमने आपका बैंक क्रेडिट एंट्री को रिकनसाइल किया, सेल को रिकनाइज किया विद द सेल, यहाँ वाली सेल विद होल्डिंग सेल, ये स्टॉक परचेज और क्लोजिंग स्टॉक जो है इसको भी हमने रिकनसाइल करना है। वैल्यूएशन क्योंकि कॉस्टिंग डिफरेंसेस है, मेथड ऑफ रिकग्निशन डिफरेंसेस है, और वैल्यूएशन भी डिफरेंसेस है, और मेथड भी डिफरेंसेस है। तो इसलिए वहाँ एवरेज हो सकता है एवरेज ही चल रहा हो, यहाँ आपका FIFO चल रहा हो, और अकाउंटिंग में आपका कोई और FIFO की स्पेसिफिक या एवरेज चल रहा हो। तो मेथड डिफरेंस, वैल्यूएशन डिफरेंस और रिकग्निशन डिफरेंसेस को, और टाइमिंग डिफरेंस हो सकता है उधर आप परचेज बेसिस, रिसीट बेसिस पे, यहाँ एक्रूवल बेसिस पे। तो सारे टाइमिंग डिफरेंस, मेथड डिफरेंस, रिकग्निशन मेथड जो भी हैं, कॉस्टिंग, वैल्यूएशन, सारे डिफरेंस को ऑनलाइन करना है, और फिर उसके मुताबिक आपने डिफरेंस आपके पास पता हो कि ये मैं रिकनसाइल कर सकता हूँ, फिर उसके मुताबिक आपने करना है। जैसे सेक्शन 7 वाला है कि आपने 6 माह तक रिकग्नाइज करना है, तो आपने रिकग्नाइज नहीं किया, और कॉस्टिंग का वो कस्टम वैल्यूएशन है, उसका डिफरेंस निकालना है, वो वाला इधर वाला कितना। ठीक है जी, ओपनिंग स्टॉक। उसके बाद फिर नेक्स्ट जो है आपका परचेजेस। आप परचेजेस जो है ये भी आपकी इंपोर्ट भी हो सकती है, लोकल भी हो सकती है। आप इसमें वहाँ फिगर आपने डाली है, ये आप एज पर योर अकाउंट्स में एज पर एक्चुअल रिकॉर्ड है, तो यहाँ भी आपने वही फिगर उसी तरह डालनी है। इंपोर्ट अलहदा, वो अलहदा, तो दोनों को करेंगे। कस्टम में और है, इसको भी फिर आप देखेंगे वहाँ परचेज कितनी है आपकी, सेल टैक्स में कितनी है। फिर बैंक में भी बाज़ दफ़ा आप डेबिट एंट्री जो है आपकी, उससे भी रिकन वो कहते हैं डेबिट एंट्री तो आपकी इतनी है, यहाँ परचेज आपकी इतनी है, तो डेबिट एंट्री बहुत ज़्यादा है, ये कम है, उसको भी आप रिकनसाइल कर सकते हैं कि वहाँ आपकी पेमेंट या अदरवाइज लेजर में क्या, उसमें क्या है, बैंक में डेबिट एंट्रियाँ बहुत ज़्यादा हैं, यहाँ कम है, तो अंडर रिपोर्ट की है या ओवर रिपोर्ट की है, तो यहाँ भी आप वो कह सकते हैं। और सेल टैक्स में जो आपने इनपुट टैक्स क्लेम किया है, वहाँ परचेज रिपोर्ट की है, तो उसमें भी उसी तरह जो आप करेंगे इंपोर्ट वाला, तो इंपोर्ट डिफरेंस, प्राइस डिफरेंस, ये वगैरह वगैरह सारे वहाँ से भी आप रिकॉर्ड, बैंक और स्टेट बैंक स्टेटमेंट, तो क्या आपकी सेल टैक्स रिटर्न, बैंक और आपका अकाउंट्स और इनकम टैक्स, तीन चारों को रिकनसाइल करके, चेक करके, डिफरेंसेस को रिकनसाइल करके, जहाँ रिकनसाइल डिफरेंसेस रिकनसाइल हैं तो उसके अकॉर्डिंग कर लें। क्लियर। इंपोर्ट वाला मैंने बता दिया वैल्यूएशन डिफरेंस क्या है। तो स्टोर्स पे भी उसी तरह ही है। फ्यूल, नेट फ्यूल चार्जेस है, उसके बाद नेट डोमेस्टिक, फिर परचेज लिखे हैं, छोटा सा सवाल जी, हमारी डायरेक्ट कास्ट आती है इंपोर्ट पे, कस्टम ड्यूटी, एडिशनल कस्टम ड्यूटी या इस तरह की, क्या हमें उन्हें परचेज के पार्ट में लिखना ज़्यादा फिजिबल है या उनको डायरेक्ट एक्सपेंसेस में लिखें? वो अलहदा सेपरेट को कहते हैं इंसिडेंटल। अब ये मैंने पहले भी कहा था कि हाउ टू रिकग्नाइज परचेज या कास्ट कैसे रिकग्नाइज करते हैं। एक तो उसकी डायरेक्ट कास्ट जो है लेस ऑफ डिस्काउंट एंड रिपेट्स, जो आपने पैसे दिए हैं उनको, वो प्राइस जो है इंपोर्ट प्राइस जो होगी, इनवाइस प्राइस होगी, एक तो वो होनी है ओरिजिनल प्राइस जो उसकी, प्लस इंसिडेंटल एक्सपेंसेस। अब इंसिडेंटल वो एक्सपेंसेस विच आर नेसेसरी टू ब्रिंग दैट गुड्स टू द प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन, जहाँ आपने लानी है वहाँ तक कोई नेसेसरी एक्सपेंडिचर है तो वो उसका पार्ट बनेंगे। जो नेसेसरी नहीं है, आपकी इनएफिशिएंसी है, सपोज डैमेज पड़ गई आपको, तो वो उसका पार्ट नहीं बनेंगे, वो अदरवाइज एक्सपेंस होंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में आप देंगे, लेकिन वो स्टॉक का पार्ट नहीं होंगे या परचेज का पार्ट नहीं बनाएंगे।
یہ انٹرنیشنل کاؤنٹنگ میں اور یہاں بھی نیسسری کاسٹ فار برنگنگ دیٹ پروڈکٹ یا گڈ ٹو دا پریزنٹ لوکیشن اینڈ کنڈیشن. ٹھیک ہے, وہ نیسسری. وہ اسی طرح جو ایڈجسٹیبل ٹیکس ہیں وہ اس کا پارٹ نہیں بنیں گے. پے تو آپ نے کیے ہیں تو وہ آپ ریفنڈ میں یا ان پٹ میں وہاں کلیم کر لیں گے. جہاں کوئی ڈیمریج ڈیوٹی شوٹی آپ کو ویسے پڑی ہے تو وہ آپ کی ان ایفیشینسی ہے, وہ اس کا پارٹ نہیں بنے گی, وہ بھی نہیں بنے گی. نیسسری انسیڈنٹل ہے اس کے لیے تو وہ پھر اس کا پارٹ بن سکتی ہے. کسٹم ڈیوٹی کس طرح دیکھتے ہیں؟ کسٹم ڈیوٹی, ایڈیشنل کسٹم ڈیوٹی, وہ تو اس کا نان ریفنڈیبل ہے, اس کا پارٹ بنے گی. علیحدہ بھی لکھ سکتے ہیں لیکن بہتر ہے کہ پرچیز کا پارٹ. نہیں علیحدہ کر, علیحدہ تو اس کی پرائس ہے. یہ سارے ان کو کہتے ہیں کیپٹلائزیشن, کہ کون کون سا اس کا پارٹ بنانا ہے, کون سا نہیں بنانا. تو آپ علیحدہ اکاؤنٹ رکھ لیں یا پرچیز کا امپورٹ ویلیو کا علیحدہ رکھ لیں یا اسی میں کریں یا علیحدہ رکھ کے پھر الٹیمیٹلی ایڈ کرنا ہے. یہاں تو ایڈ کرنا ہی کرنا ہے. اب وہی آپ ایک ہی ہیڈ کے 10 لیجر کھول لیں, پارٹی وائز کھول لیں, کسٹم کا علیحدہ کھول لیں, ڈیوٹی علیحدہ پروڈکٹ وائز کر لیں. وہ تو آپ کی مینجمنٹ ہے کہ آپ 10 چیز امپورٹ کرتے ہیں, ہر ایک کا علیحدہ علیحدہ بنا لیں کہ یہ چیز آپ کا سویابین خریدا ہے, یہ آپ نے اور کوئی آئل ہے, یہ ہے, ہر ایک کا علیحدہ علیحدہ کھول لیں کہ اس کی جی ڈی ہے, اس کی پرائز اتنی ہے, اتنی کسٹم ڈیوٹی, اتنا آپ کا انکم ٹیکس ہے, اتنی فیڈرل ایکسائز ہے, اتنا یہ ہے, اتنے انسیڈنٹل ہے, اتنے کلیئرنگ ہے, اتنے فارورڈنگ, اتنی فریٹ ہے, اتنی انشورنس ہے. تو وہ سارے علیحدہ علیحدہ کر کے الٹیمیٹلی ٹوٹل ہو جائیں گے. تو یا اسی کا ہی پارٹ بنا کے ٹوٹل بنا لیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے نا. وہ جتنی آپ کو مینجمنٹ کی زیادہ انفارمیشن چاہیے اتنی کلاسیفیکیشن اور اتنے زیادہ آپ کر لیں. پارٹی وائز بھی, سپلائر وائز بھی آپ کر سکتے ہیں, جی ڈی وائز بھی کر سکتے ہیں, پروڈکٹ وائز بھی کر سکتے ہیں. 10 سپلائر ہیں آپ کے تو ہر سپلائر وائز ریکارڈ رکھ لیں, پروڈکٹ وائز کر لیں. ٹھیک ہے نا. تو اس طرح جی ڈی وائز رکھ لیں, جیسے آپ نے پروڈکٹ وائز, جی ڈی وائز. یہاں تو وہ یہاں وہ تو پرچیز کا پارٹ بننا ہی بننا. یہاں بن کے پرچیز آپ دیں گے نا. یہ پرچیز جو ہے آپ کی ڈومیسٹک پرچیز گڈ, یہ پرچیز والی ہے جو آپ مینوفیکچرنگ کی ہے, را مٹیریل والی ہے, تو اس میں کنزیوم کا اسی کا پارٹ ہے. یہاں اس نے سیپریٹ نہیں کہا ہوا. اگر وہ کہتا کہ جو آپ نے پرچیز کی ہیں ان کی پرائس علیحدہ دیں, انسیڈنٹل علیحدہ دیں, تو یا ادھر امپورٹ کا یہ نا, یہاں امپورٹ کا علیحدہ ہے, اس کا علیحدہ ہے. اب اس میں امپورٹ میں انسیڈنٹل کا اس نے نہیں کہا علیحدہ دیں. یا کیا لکھا ہوا ہے, امپورٹڈ را مٹیریل کمپوننٹ کنزیومڈ. ٹھیک ہے, کنزیوم کنزمپشن کی یہاں ہے, نیچے علیحدہ اس نے دیا ہوگا, علیحدہ آپ کیلکولیٹ کریں گے, وہ آپ کے پاس علیحدہ ہوگا. اس میں کنزمپشن ادھر آپ نے لکھنی ہے, اس میں سے اوپننگ کلوزنگ اسٹاک آپ لیس کر دیں گے. پرچیز کا یہ کنزمپشن کا ہے نیچے پارٹ, اوپر پرچیز کا پارٹ ہوگا. وہاں اس نے کہا نیٹ پرچیز, تو نیٹ پرچیز کے 2 حصے کریں گے آپ. پرچیز میں امپورٹ کو علیحدہ, اس کو علیحدہ, تو علیحدہ علیحدہ آپ اس کا کریں گے. تو اس میں آل اس کی کاسٹ جو برنگنگ دیٹ لوکیشن ہے وہ اس کا پارٹ ہے. انسیڈنٹل اس میں پرائس بھی ہے, سارے ٹیکسز جو نان ایڈجسٹیبل ہیں وہ بھی ہیں, اور انسیڈنٹل بھی ہیں, فریٹ بھی, سب کچھ ایڈڈ ہے. تو علیحدہ ڈیٹیل آپ کے پاس اپنے ریکارڈ میں ہوگی. یہ ایک پریزنٹیشن ہے, سمری فارم ہے. یہاں ڈیٹیل آپ کی لیجروں میں ہوتی ہے. لیجر آپ علیحدہ علیحدہ ہر چیز کا علیحدہ کھول سکتے ہیں. یہ جتنے اکاؤنٹس فائنینشیل اسٹیٹمنٹ دے آر پریزنٹیڈ دا فائنینشیل انفارمیشن ان ٹو سمری فارم. ٹھیک ہے, گروپ کر کے سرٹن ہیڈ کے اندر سمری فارم میں دیے جاتے ہیں. وہاں آپ کہیں ایزی بیزی ہر ڈیٹیل دیں, وہ لیجر کا پارٹ ہے, وہ جو بکس آف اکاؤنٹ کا پارٹ ہے. بکس آف اکاؤنٹ میں آپ کی علیحدہ علیحدہ ہر چیز بن سکتی. وہ سارے لیجر جو اس کے ریلیونٹ ہے وہ کمبائن کر کے نیٹ فگر ادھر. یہ سمری فارم میں اب ان ڈیٹیل ساری نہیں علیحدہ علیحدہ لکھنی. تو اس لیے اس کے لیے پریسکرائب ادھر بھی 5th 4th شیڈول میں ہے کہ آپ نے یہ فگر لکھنی. تو وہی فگر آپ اکاؤنٹ سے جو سمری میں الٹیمیٹ آئی ہے وہ پریزنٹ کریں گے. اس طرح یہاں بھی پریسکرائب فارم میں اس نے یہ فگر لکھ دی کہ آپ نے نیٹ جو ہے, نیٹ سے مراد اس میں کوئی ڈسکاؤنٹ شکاؤنٹ ہے تو وہ لیس کریں. ٹھیک ہے, کوئی ایڈ ہونے والے تو ایڈ کریں. تو اس لیے اس کو پرچیز جو ہے پرچیز کو نیٹ کریں. گراس نہیں لکھی اس نے. گرا لکھتا تو آپ ہو سکتا ہے ڈسکاؤنٹ ایڈ کر کے لیس بھی کرواتا. اب اس نے کہا اس میں ڈسکاؤنٹ شکاؤنٹ جو ہے کوئی چیزیں ہیں جو فریٹ ان آؤٹ ایڈ لیس ہیں تو وہ کر لیں. اسی طرح کوئی اور چیزیں انسیڈنٹلز ہیں جو ایڈ ہونے والے ایڈ کر لیں, جو لیس ہونے والے لیس کر لیں. اسی طرح ٹیکسز جو ہیں اس کے اندر ہیں جو ایڈجسٹیبل ہیں نیٹ کر لیں. تو اس لیے یہاں نیٹ کا ورڈ نیٹ پرچیز ہے, گراس نہیں ہے. سارے ایڈ لیس کرنے کے بعد جو نیٹ فگر جو پیور پرچیز ہونی چاہیے وہ ہے. امپورٹ کی علیحدہ, اس کی علیحدہ, اور دونوں کا پھر نیٹ پرچیز. کلیئر جی.
हमने प्रेस्क्राइब जब है तो प्रेस्क्राइब मुताबिक उसके मुताबिक ही आपने इंफॉर्मेशन देनी। तो फिर इसके बाद आगे नेक्स्ट है कंजम्पशन। रॉ मटीरियल कंज्यूम, इम्पोर्टेड रॉ मटीरियल, क्योंकि परचेज अलहदा दे दिए, स्टॉक अलहदा दे दिए, तो ये कंजम्पशन भी वो खुद ही कैलकुलेट कर देगा। ओपनिंग क्लोजिंग, ये सेमी फिनिश, डोमेस्टिक फिनिश्ड और इम्पोर्टेड फिनिश गुड्स। तो एक अब इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो प्रेजेंटेशन है, इसमें एक तो आप ऐसे हो सकता है कि आप एक चीज़ मैन्युफैक्चर भी करते हैं, यू आर मैन्युफैक्चरर एज वेल एज ट्रेडर। तो आपके पास फिर एक आप बाज़ार से, मार्केट से परचेज करके भी बेचते हैं, एक रॉ मटीरियल परचेज करके, प्रोसेस करके, मैन्युफैक्चरिंग करके वो भी बेचते हैं। तो इसमें जो फिनिश गुड्स हैं, फिनिश गुड्स आप परचेज करके डायरेक्ट भी सेल कर सकते हैं, इसमें मैन्युफैक्चरिंग कास्ट फिर आपकी नहीं होगी। जस्ट आपने परचेज की, उसका ओपनिंग स्टॉक होगा और उसमें से क्लोजिंग स्टॉक होगा। फिनिश गुड्स ओपनिंग, फिर क्लोजिंग, परचेज की, परचेज में एडलेस होगी तो कास्ट ऑफ सेल आ जाएगी। ये वो ट्रेड वाला पार्ट है। मैन्युफैक्चरिंग वाले में फिर आपका रॉ मटीरियल आएगा, ओपनिंग रॉ मटीरियल होगा, फिर आपका रॉ मटीरियल का लेबर लगेगी, फैक्ट्री ओवरहेड लगेंगे, फिर आपकी टोटल कास्ट बनेगी, उसमें से क्लोजिंग, वर्क इन प्रोसेस, फिनिश गुड निकलेंगी, तो फिर कास्ट ऑफ सेल आएगी। उसके फिर सारी चीज़ें आपने वो पूरी रिपोर्टिंग, पूरी मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री वाला अकाउंट देना होगा। फिर उसके क्लोजिंग होगा, स्टोर भी होंगे, उसमें फिर 4 स्टॉक अलहदा होंगे। ये फिनिश फार्म अलहदा होगा, वो अलहदा होगा, ठीक है, तो वो आप दे देंगे। इसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस दे देंगे। ये फिर सैलरी है, पावर है, गैस है जो फैक्ट्री में होते हैं, रिपेयर मेंटेनेंस, इंश्योरेंस है, रॉयल्टी है, अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। ये आपके बेसिकली परटेन टू फैक्ट्री हो, मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेडिंग से डायरेक्ट रिलेट करते हो, और फॉर दैट पर्पज हों, और फैक्ट्री में इनको परटेनिंग टू टैक्सियर हों, और इस हाल से रिलेट करते हो। ये क्वालिटी होगी तो वो डायरेक्ट एक्सपेंस जो है आप। इसी तरह जो डेप्रिसिएशन डायरेक्ट है आपकी, वो आप एडलेस करेंगे। जितनी आपकी डेप्रिसिएशन जो है, जो मशीनरी इधर यूज़ हुई है इन द मैन्युफैक्चरिंग, जैसे आपकी बिल्डिंग है या मशीनरी है जो भी, या कोई इक्विपमेंट जो फैक्ट्री में यूज़ हुए हैं, तो उसकी डेप्रिसिएशन उन एसेट की इधर करेंगे, या टोटल कैलकुलेट का अपोर्शनमेंट कर देंगे कि इसका इतना पोर्शन जो है मैन्युफैक्चरिंग में, इतना एड में सेलेंगे, तो कार्डली रेशो कर देंगे। तो क्लोजिंग स्टॉक आप उसी तरह सारे जो है तीनों चारों लेस करेंगे। लेस करने के बाद ये फिनिश गुड भी, ये फिनिश गुड, ओपनिंग, क्लोजिंग, ये वो सब करने के बाद तो ग्रास प्रॉफिट आपका, कास्ट ऑफ सेल लेस करेंगे सेल में से, तो आपका आ जाएगा। इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आगे है, इसमें जो आए फ्यूल या इलेक्ट्रिसिटी, यूटिलिटी, वो बिल में भी यूजुअली कन्फ्यूजन होती है कि आपके बिल और होते हैं, उसमें आपके टैक्सेस होते हैं एडजस्टेबल, तो लोग यूजुअली टोटल बिल डाल देते हैं 12। तो इसलिए वो टोटल बिल जो है गैस का हो, इलेक्ट्रिसिटी का हो, तो शीट बनाएं 12 महीनों की, उसमें से जो एडजस्टेबल टैक्सेस हैं वो लेस करें, कोई रिलीफ शीट है वो लेस करें, और फिर टोटल बनाएं, देखें कि क्लेम उतना ही है, एक्सेसिव तो नहीं है। फिर देखें उधर आपने जो बिल कम ज़्यादा तो नहीं है, 4-5 आपके कमर्शियल भी है, आपका इंडस्ट्रियल कनेक्शन भी है, ऑफिस भी है, तो सारे आपने शो किए हैं, सारे डिक्लेयर्ड हैं। तो सेल टैक्स में देखें वहाँ कितना आपने शो किया हुआ है, और इसको भी आप मैच करें, और वापस से बिल लेके कोई एक्सेसिव तो नहीं है, उसमें टैक्सेस इसमें शामिल तो नहीं है, भी क्लेम भी कर रहे हो और इधर भी एक्सपेंस में भी डाले हों। तो इसलिए जितने यूटिलिटीज़ हैं, टेलीफोन हो गया आपका, ये वाला हो गया क्या, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, गैस हो गया, तो ये स्पेसिफिक हैं कि कोई थर्ड पार्टी से ये कन्फर्मेबल भी हैं, और आपके ऑनलाइन भी आजकल तो बिल अवेलेबल हैं। तो इसको आप जो थर्ड पार्टी कन्फर्मेबल हैं वो एटलीस्ट उनको टैली करें, रिकंसाइल करें, एक्सेसिव या अंडर तो नहीं। क्लियर जी। तो इसके बाद इंश्योरेंस है, तो साथ आप करस्पॉन्डिंग देखें कि इंश्योरेंस गाड़ियों की है तो गाड़ियाँ भी रिपोर्ट हैं कि नहीं, या मशीनरी की है तो वो मशीनरी भी रिपोर्ट है कि नहीं। करस्पॉन्डिंग भी बैलेंस शीट में आप कोई चीज़ एक्सपेंस के साथ चेक करते हैं। डेप्रिसिएशन चार्ज की है जिस पे की है वो ओन्ड है या लीज है या क्या चीज़ है, तो वो वाली भी साथ चीज़ें आप। रिपेयर मेंटेनेंस बिल्डिंग की है, प्लांट मशीनरी की है, या व्हीकल की है, या किसकी है, वो करस्पॉन्डिंग एसेट है भी कि नहीं। इसमें कोई कैपिटल पार्ट तो नहीं है, वो भी असेस कर लें, क्योंकि कैपिटल अलाउ नहीं होता जिसकी लाइफ 1 साल से ज़्यादा हो। तो ये चीज़ों को आपने सारा एग्जामिन करना है, उसके मुताबिक फिर इसकी रिपोर्टिंग करनी, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक फिर उसी तरह, कास्ट ऑफ सेल, ग्रॉस प्रॉफिट। तो अब ग्रॉस प्रॉफिट जो आपका आएगा हो सकता है आपका जो अकाउंटिंग में वहाँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ग्रॉस प्रॉफिट हो वो इससे टैली नहीं करेगा।
کیونکہ یہاں اوپر آپ نے جو ایک کچھ چیزیں لیس کی ہیں جو کہ بروکریج کمیشن وغیرہ جو کہ ادروائز وہاں لیس نہیں ہے, وہاں ایڈمن سیل میں اتنا ہی فرق ہوگا. آپ چیک کریں گے جو چیز یہاں ایڈیشنل آئی ہیں اوپر یا نیچے ان کا افیکٹ دیکھ لیں تو اتنے دیر گراس پروفٹ جو ہے آپ کا کم ہو گیا ہوگا. نیچے سے اب جا کے الٹیمیٹلی ٹائٹل ہو جائے گا. نیچے یہ ادر ریونیو دیکھ لیا ہم نے. یہ ادر ریونیو آپ کا فی فار دا سروسز ہے, پروفٹ آن ڈیٹ ہے, رائلٹی ہے, لائسنس فیس ہے, اکاؤنٹنگ گین آن سیل آف انٹینجیبلز ہے, اکاؤنٹنگ گین آن سیل ایسٹس ہے, ادرز ہے. تو یہ آپ کے ادھر سارے ادر میں لکھے ہوں گے. تو یہاں یہ کیونکہ اکاؤنٹنگ کے مطابق کلاسیفیکیشن ہے تو اس میں صرف ایک وہ ریونیو ہے سیل والے, ایک ادر ہے. تو اکاؤنٹنگ میں ایسے ہی ہے ادھر. تو یہاں ہم پھر ان کو ایڈ بیک کریں گے, ہر ہیڈ میں علیحدہ علیحدہ لے کے آئیں گے. ٹھیک ہے. ادر گین آن بلڈ. جی بیٹا یہ آگے مینجمنٹ ہے, رینٹ ہے, رینٹ ڈیڈ شیٹ سے دیکھیں کتنا ہے. یہ وہ ود ہولڈنگ ہے, کراس چیک ہے, ایکسپینس جتنے بھی ہے آپ نے دیکھنا. کراس چیک بھی ہیں جو لمٹ سے اباؤ ہیں, اور ود ہولڈنگ ہے پھر آپ کلیم کر سکتے ہیں, نہیں تو پھر اس کو انالیسس کر لیں. باقی ساری چیزیں بھی اینڈ تک دیکھیں. نیچے یہ سارے اکاؤنٹنگ کے مطابق یہ سارے ایکسپینس اینڈ تک اکاؤنٹنگ لاس پروفٹ یہ آپ نے جسٹ فیڈ کیا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اب ہم دیکھیں گے کہ اس سارے کو جو سینیریو ہے ایکسپینس, سیل اور آپ کے ریونیو کو آگے ہم کلاسیفائی کرنا ہے انٹو واپس جو ہے 4 ہیڈ میں, پراپرٹی میں, اور جو پراپرٹی ریلیٹڈ ایکسپینس ہے اس میں سے نکال کے ادھر لے کے جانے ہیں. پھر بزنس میں سے, بزنس اور ادر میں سے جو نیٹ پرافٹ میں ایڈڈ ہیں چیزیں, کیونکہ ادر انکم ایڈڈ ہے, گین ایڈڈ ہے, اس کو ایڈ بیک کرنا ہے پہلے, پھر اپنے ریلیونٹ ہیڈ میں لے جا کے اس کے اپورشنمنٹ ایکسپینس جو ہے وہ ہم نے ادھر کرنے ہیں. اسی طرح جتنے آپ کے یہ والے انڈویزبل ڈائریکشنز ہیں, اب جہاں جہاں کے ایڈ بیک آپ نے پروویژن فار ڈاؤٹ فل ڈیٹ, تو جتنے پروویژن وہاں اکاؤنٹ میں ڈالے ہیں یہاں وہ نہیں ہے. جو ایکچوئل بیڈ ڈیٹ ہوگا وہ الاؤبل ہوگا, وہ ایڈ لیس آپ نے کرنے ہیں. یہ سارے انڈویزبل ڈائریکشن اس میں سارے لکھ لیں جن پہ ریزروز ہیں یا یہ ٹیکسیشن ہے. یہ وہ آپ کا 21 میں سارے یہ لسٹڈ ہیں. تو اس میں کی پیمنٹ لائبل ڈائریکشن ٹیکس نہیں کاٹا آپ نے, وہ والے سارے آپ نے ادھر لکھنے ہیں. یوزلی لکھتے نہیں ہیں لوگ, تو کہتے ہیں جب وہ نوٹس دیں گے تو خود ہی ڈسراؤ کریں گے. تو اس میں سے آپ نیچے آ جائیں سارے. اب ہم نیچے چلتے ہیں جہاں ڈڈکس یہ ڈویزیبل ڈائریکشنز ہیں, کچھ انڈویزیبلز ہیں. تو آگے یہ ایڈ بیک والے اکاؤنٹنگ ڈیپریسیشن یہ وہ سارے ہم نے ایڈ بیک کرنے. اس طرح موسٹ امپارٹنٹ ہے یہ ڈیپریسیشن والے, اور جو جتنی انکم ہم نے ادھر ریکگنائز کی ہے جو اکاؤنٹنگ میں کیپٹل گین ہے کیونکہ وہ اکاؤنٹنگ پوائنٹ آف ویو سے ہے. اسی طرح کیونکہ ہم نے کمپوٹیشن جو ہے اکاؤنٹنگ پوائنٹ آف سے کی ہے تو یہاں وہ گین وہاں ایڈ ہوا ہے تو یہاں اس کو لیس کر دیں گے. تو اسی طرح جتنے بھی رینٹ ہیں یا اور چیزیں ہیں یہاں ان کو لیس کریں گے اور رینٹ کے پورشن میں لے کے جائیں گے. اس کے ریلیٹڈ ایکسپینس جو ہیں وہ بھی یہاں سے اس کی ایڈجسٹمنٹ کریں گے اور ادھر لے کے جائیں گے. اسی طرح جتنے آپ پروفٹ آن ڈیٹ ہے وہ بھی ایڈ بیک کریں گے, یہاں ایڈ بیک کر کے اس کا جو ہیڈ ہے ادر سورس وہاں لے کے جائیں گے. اسی طرح پروفٹ آن ڈیٹ کے ڈیویڈنٹ ہے یا اور ہیڈ ہیں وہ جتنی بھی انکم رینٹ ہے یا ادرز ہیں یا پروویژن جتنے بھی ہیں, گریجوٹی ان اپرووڈ ہے وہ بھی سارے, یا ورکر ویلفیئر فنڈ ہے یا ورکر پرافٹ پارٹیسپیشن فنڈ ہے, وہ سارے ایک دفعہ ہم جو لیس کیے ہیں وہ ایڈ کر دیں گے اور دوبارہ جتنی پیمنٹ ہے پھر وہ الاؤ کریں گے. اسی طرح انکم جتنی ایڈ ہوئی ہیں وہ لیس کر دیں گے, ایکسپینس لیس ہوئے ہیں وہ ایڈ کر دیں گے. ایڈ کر کے ڈویزیبل اور انڈویزیبل میں ایڈ کر کے تو دوبارہ دیکھیں گے کہ ٹیکسیبل انکم آپ کی انکم فرام بزنس سے کہاں آتی کتنی آتی ہے, اور پھر اس کے بعد پھر وہ اپنے اپنے ہیڈ میں جائیں گے. جیسے آپ پراپرٹی میں آ جائیں, یہاں کوئی رینٹل انکم ہے تو یہاں ایڈ بیک ہو جائے گی, یہاں ایڈ وہ پہلے ایڈ ہوئی اب لیس ہو جائے گی, اب پھر رینٹ والی پراپرٹی میں آ جائے گی, ادھر پراپرٹی میں آ جائے گی. اور اس کے ریلیٹڈ کوئی ایڈوانسز ہیں وہ بھی آ جائیں گے, اس کے ریلیٹڈ ایکسپینس کی بھی ادھر ایڈجسٹمنٹ ہو جائے گی. پہلے ایکسپینس الاؤ ہوئے ہیں وہ ایڈ بیک ہو جائیں گے, اتنے ادھر الاؤ نہیں ہوگے, وہاں یہاں آگے الاؤ ہوں گے.
यहाँ अब आप प्रॉपर्टी में आ जाएंगे, क्योंकि उधर प्रॉपर्टी अदर सोर्स में रेंटल इनकम है, ऐड हुई है पहले नेट प्रॉफिट में। अब जब हमने एडजस्टमेंट की है तो नेट प्रॉफिट में एडेड में से उसको लेस कर देना है, ताकि रिमेनिंग बिजनेस प्रॉफिट रह जाए। तो जितनी भी हेड हैं, जितने भी उसमें पहले एडेड हैं, वो सारे लेस करके उसको बिजनेस प्रॉफिट तक लाना है। बिजनेस प्रॉफिट जो बिजनेस रिलेटेड है वो वहाँ रह जाए, बाकी सारे ऐड बैक करके इधर ले आने। इस तरह एक्सपेंस जो है वहाँ जो हमने क्लेम किए प्रॉफिट एंड लॉस में या वो उसमें आपके ट्रेडिंग में, मैन्युफैक्चरिंग में, उनमें से जो पोर्शन इन अदर सोर्स ऑफ इनकम का है वो निकाल देना है, ताकि रिमेनिंग जो है वो बिजनेस इनकम के रिलेशन वहाँ रह जाए, और बाकी जो इन हेड के रिलेटेड है वो इन हेड में इनकम भी आ जाए, और रिलेटेड अपॉर्चुनमेंट वाला जो एक्सपेंसेस है वो भी इधर आ जाए। और इसके लिए कि अपॉर्चुनमेंट के एक्सपेंडिचर को कैसे करना है, तो ये आपका एक सेक्शन है 66 या 67, देखें ना, फिर हम उसको एक एक करके फिर उनको, वैसे तो हर हेड में ही लिखा होता है कि ये इनकम है, इसमें से ये एक्सपेंसेस अलाउबल होंगे। अब कंबाइन है तो ऑपरेशन के में 67, तो 66 को भी देख लेते हैं, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 66 इनकम ऑफ जॉइंट ओनर। अगर कोई प्रॉपर्टी जॉइंट है तो वो अगर डेफिनेट है और सर्टेनेबल है तो उसका शेयर जितना जितना है अपने अपने में देंगे, अगर नहीं है तो अदरवाइज फिर वो एज ए AOP असेस होगी। एक प्रॉपर्टी है, जॉइंट है और वो रेंट आता है उसका, तो अब वो एज ए इंडिविजुअल असेस हो या जॉइंटली AOP हो, तो उसमें आपने देखना है कि अगर उसमें शेयर जो है, रेंट का शेयर, प्रॉपर्टी का शेयर जो डेफिनेट है और असर्टेनेबल है कि इसमें से इसका कितना ओनरशिप है, सपोज एक की 60% है कि 40 है, असर्टेनेबल है और डेफिनेट है, तो फिर उसी रेशो से करके अपनी अपनी में डिक्लेयर कर लेंगे रेंट। अगर असर्टेनेबल नहीं है कि इसका इतना है या इतना है, फिर जॉइंट असेस होगी, फिर एज ए AOP समझ करके वो उसको असेस किया जाएगा। क्लियर जी। तो अब अपॉर्चुनमेंट ऑफ डिडक्शन, सब्जेक्ट वेयर एंड एक्सपेंडिचर इनकम डिडक्शन एंड अलाउंसेस रिलेट टू ड्राइवेशन ऑफ मोर देन वन हेड ऑफ इनकम। तो अब कोई एक्सपेंस जो मोर देन एक से ज़्यादा हेड में हुआ है, सपोज एक आपने वहाँ कोई एक्सपेंस इनकर किया, वो प्रॉपर्टी इनकम से भी रिलेट करता है, उस फाइनेंशियल चार्जेस से, डिविडेंड से भी करता है, प्रॉफिट ऑन डेट से भी करता है, सेल ऑफ एसेट या इन्वेस्टमेंट से भी रिलेट करता है, जॉइंट एक्सपेंडिचर है, तो उसको फिर हम पोर्शन करेंगे। बिजनेस जो बिजनेस प्रोपोर्शन रिलेट होगा वो वहाँ रह जाएगा, जो बाकी हेड होगा उतना वहाँ चले, क्योंकि पहले ऑलरेडी वो प्रॉफिट इन लॉस में या वहाँ है, वहाँ फिर एड बैक हो जाएगा, वहाँ उतना रह जाएगा जितना वो बिजनेस इनकम से रिलेट करता है। जो प्रॉपर्टी से, जब प्रॉफिट ऑन डेट से या डिविडेंड से या अदर डिस्पोजल रिलेटेड गेन से या किसी और से रिलेट करता है, या एग्रीकल्चर एक्सपेंस आपने किए हैं तो वो वहाँ से निकल के वो एग्रीकल्चर के पार्ट में चले जाएँ। तो किसी भी सोर्स इनकम के जो भी खर्चा होगा जिससे रिलेटेड होगा, डायरेक्टली एट्रीब्यूट होगा, वो वहाँ से निकल के उस सोर्स ऑफ इनकम के, इसको मैचिंग भी कहते हैं, कि उसके साथ मैच करना है, उसमें से डिडक्ट करना है और किसी अनरिलेटेड से उसको लेस नहीं करना। तो derivation of more than one head of income or derivation of income comprises of taxable income any class of income to which subsection 5, 6 or 4 plus derivation and charge tax under the head income and to some other purpose। तो और जैसे पर्सनल है, कैपिटल है, वो ऐसे अलाउबल नहीं है, तो और रिलेटेड हेड हैं तो वो भी निकाल देने, जो उससे रिलेटेड नहीं है या किसी और हेड है कि तो वहाँ ट्रांसफ़र कर दें। तो यहाँ अपॉर्चुनमेंट जो है, आप यहाँ एक्सपेंडिचर अलाउंसेज जो हुआ है उसी तरह अपोर्शन किए जा सकते हैं। क्लियर जी। वापस से इसी तरह आपके जिसने ग्रेजुटी फंड्स हैं, प्रोविडेंट फंड्स हैं, उनको भी आपने ऐड बैक करना है। उसमें जो पेमेंट हुई है, वैसे तो अनअप्रूव्ड जो है वो अलाउबल नहीं है, लेकिन लॉ में जितनी ग्रेजुटी की जितनी लिमिट है वो आपको अनअप्रूव ऐड बैक कर देंगे, या ऐड बैक करके जो पेमेंट है या अप्रूव है वो अलाउ करेंगे। वर्कर वेलफेयर भी ऐड बैक करेंगे, ऐड बैक करके जितने करेंगे। इस तरह प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है वो भी सारे ऐड कर देंगे। लॉ में सेक्शन 29 है, उसमें जो एडमिसिबल है, एक्चुअल बैड डेट है, वो आप कर देंगे। कोई रिकवरी हुई है तो वो इनकम में डाल देंगे। तो इस तरह आप ऐड बैक करके सारे ऐड बैक करके उसके मुताबिक करेंगे। तो सारे हेड जो है, प्रॉफिट ऑन डेट को भी उसी तरह उसके एक्सपेंस लेस करके कैपिटल गेन वाली रिकम्प्यूटेशन करेंगे अकॉर्डिंग टू द टैक्स लॉ, कि टैक्स लॉ में कितनी कास्ट लॉ नहीं है, कितने एक्सपेंडिचर हैं, उसका डिटर्मिनेशन करेंगे। और फिर उसकी आगे सेग्रीगेशन भी हमने करनी है कि इसमें से नॉर्मल कितना है, मिनिमम कितना है, और आपका फाइनल डिस्चार्ज कौन सी रजीम में फॉल करता है। तो ये वाला एरिया एक्सपेंडिचर का हम कंप्लीट कर लेंगे। करने के बाद नेक्स्ट आ जाएँ।
फिर हम कैरी फॉरवर्ड और एडजस्टमेंट ऑफ लॉसेस। तो पिछले सालों के कोई अगर लॉसेस हैं तो 6 साल तक यूजुअली वो आप कैरी फॉरवर्ड और एडजस्ट कर सकते हैं। बिजनेस लॉसेस जो हैं वो बिजनेस के अगेंस्ट है। तो इस तरह कैपिटल लॉसेस होते हैं जो कैपिटल वो आगे उसके अगर स्पेकुलेशन लॉसेस है तो स्पेकुलेशन इनकम में जाएंगे। तो इसी तरह डेप्रिसिएशन जो है वो फॉर एवर फॉरवर्ड हो सकती है। तो फर्स्ट लॉस जो होगा इसके लिए सेक्शन 56, 7, 8 है, पहले डिटेल हमने डिस्कस किया हुआ है। तो उसको सामने रखते हुए कि कब तक कैरी फॉरवर्ड करना है, तो जो पहले साल का लॉस होगा कैरी फॉरवर्ड वो पहले एडजस्ट करें, ताकि वो 6 साल बाद एक्सपायर्ड हो जाना है वो पहले एडजस्ट करते जाएं, पहले एडजस्ट करें फिर ऑनवर्ड। ठीक है, पहले सारों हेडों में एंगेज ईच हेड है वो कैरी फॉरवर्ड सेटअप हो सकते हैं, लेकिन करंट ईयर का हो सकता है, लेकिन ब्रॉड फॉरवर्ड जो होगा वो बिजनेस इनकम के एंगेज हेड होगा, दूसरे हेड के एंगेज नहीं होगा। डेप्रिसिएशन टोटल अगले साल का पार्ट बन जाएगी, वो ऑनवर्ड चलेगी। ठीक है जी, वो सारे सालों के आपके पिछले सालों के लॉस लिखे होंगे, इसमें रिपोर्ट करेंगे। तो बाद दफ़ा आप इसको खाली छोड़ देते हैं, फिर अगले साल आप क्लेम नहीं कर सकते। तो हर साल का जो आपका अनएडजस्टेड लॉस है वो सारा इधर आप लिख लें। हर साल लिखते जाएंगे जब तक एडजस्ट नहीं होगा। जी हाँ जी, वो लेते 6 साल बाद और हो जाएगा, वो टाइम बाद हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। जो आपने कहा इस साल मैंने नहीं लिखा, मेरे पास में 23 का लास्ट था, 24 में मैं लिखना भूल गया, या मैंने 25 में जाकर मैं 23 का लास्ट लिख सकते हैं अगर आपको सिस्टम अलाउ करेगा तो, ठीक है, नहीं तो रिवाइज करके दे दें। ठीक है, रिवाइज भी रिटर्न कर सकते हैं ना, तो उसमें रिवाइज कर लें। मेरा ये रह गया, एरर ओमिशन तो हो सकता है, सही है। तो रेक्टिफिकेशन भी हो सकती है। बहरहाल वो आपका क्लेम है कि आप उस कर सकते हैं, लेकिन अगर क्लेम करना हर चीज़ के लिए ज़रूरी है तो इसमें आप डालेंगे, जब खुद ही नहीं क्लेम किया तो आगे कैसे चलेगा। सही है। ठीक है, तो रेक्टिफाई कर लें या रिवाइज। इनकम थी इतनी थी जिससे मेरा टैक्स पूरा था, मुझे लॉस एडजस्ट करने की जरूरत नहीं थी। हैं मेरे पास इस साल इनकम नहीं थी जिसका मेरे पास टैक्स अवेलेबल था, या मेरे पास इस साल भी इनकम नहीं थी। ठीक है, सही है, अच्छी बात। तो क्या फिर भी मैं सूरत जी, क्योंकि अगले साल हो सकता है आपके पास बहुत सारी इनकम आ जाए, तो नहीं फिर आपको इधर नहीं होगा तो सारे पे टैक्स देना पड़ेगा। पहले इनकम आएगी तो आप ये लॉस एडजस्ट करेंगे, फिर लॉस के बाद देखेंगे इनकम टैक्सेबल है कि नहीं, फिर टैक्स देना पड़ेगा। अगर आप इधर क्लेम ही नहीं करते होंगे, आपने क्लेम नहीं किया, आप एडजस्ट कैसे आपने इनकम रिड्यूस कर ली टैक्सेबल को, तो टैक्सेबल इनकम आई है तो उसको आपने रिड्यूस करना है पहले लॉसेस से। जो आपने कंप्यूटेशन की है वो एड बैक की है, एडमिजिबल इनएडमिजिबल के बाद आ गई है ना, उस पर आप ये आप कैरी फॉरवर्ड सेट ऑफ पहले करंट ईयर पहले इंटर एडजस्टमेंट होती है कि आपके 3 बिजनेस है, तो आपस में एक में प्रॉफिट है एक में लॉसेस है, पहले आपस में एडजस्ट कर लें, वो बिजनेस हो गया। फिर पिछले साल का वाला, फिर डेप्रिसिएशन वाला करंट ईयर पिछले साल वाली, फिर उसके बाद पिछले साल जो ओल्डेस्ट है वो एडजस्ट करें। तो पहले वो हो गया, ठीक है, सारे भी एडजस्ट हो गए तो फिर भी ठीक है, नहीं तो ऑनवर्ड इस तरह चलते जाए। क्योंकि आपका ये जो कैरी फॉरवर्ड है ये इसमें आपका बिजनेस लॉसेस या वो लॉसेस हैं, डेप्रिसिएशन नहीं है, डेप्रिसिएशन के अलावा है। ठीक है, तो वो ये वाले आप कैरी फॉरवर्ड ऑनवर्ड लेते जाएँ। तो ओल्डेस्ट पहले 19 वाला, फिर 20 वाला, फिर इस तरह एडजस्ट करते हैं ताकि वो आपके एक्सपायरी से बच जाए। वैसे इसकी डिटेल के कैसे सीक्वेंस फॉलो करना है, कौन सा एडजस्टेबल है, कहाँ है, कैसे नहीं है, वो आपका 56(7) जो है सेक्शन ऑलरेडी हमने पढ़े हुए हैं। तो बहरहाल हाँ, डिटेल डिस्कस वो हमारी एक वीडियो पहले भी पढ़ी है। यहाँ बेसिकली ये है कि आपने इसको फिल करना है ताकि ये आपका क्लेम रहे, और अगर एडजस्टेबल है पिछले साल का कैरी फॉरवर्ड है इस साल में, बिजनेस इनकम में, स्पेकुलेशन में या कैपिटल में, जहाँ कहीं एडजस्ट जो चीज़ होती है उसको एडजस्ट कर लें। क्लियर जी, और आप इसको फिल करें, छोड़े नहीं, बेसिकली अपने पिछली हिस्ट्री देख लें उसके बाद चलें। फिर आपकी ये बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट को भी आप चेक करें, वहाँ की बैलेंस शीट जो हो आपकी उसके मुताबिक जो आपकी अकाउंट्स में फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो फिल करनी है। बाद दफ़ा इस पर भी नोट दे देते हैं ये आपकी रिटर्न डाउन वैल्यू शेड्यूल में और है, यहाँ और है, तो आप सिंपली कह सकते हैं कि ये जो है वो शेड्यूल वाली नहीं है, वो तो टैक्सेशन पर्पज़ के लिए कैलकुलेशन है। यहाँ ये बैलेंस शीट वो है जो प्रॉफिट एंड लॉस, जो बैलेंस शीट फाइनेंशियल ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो वाली इधर लिखनी है। वो वाले टैक्सेशन में तो डेप्रिसिएशन में, प्रॉफिट एंड लॉस में तो डेप्रिसिएशन और है, तो टैक्स में और है, तो फिर वहाँ कहेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में वो क्यों नहीं। तो इसलिए वो रिकन्सिलेशन है विद काउंटिंग टू टैक्सेशन, और उसके लिए 34 सेक्शन में स्पेसिफिकली रिकन्सिलेशन भी मांगी हुई है कि अकाउंटिंग प्रॉफिट को आप रिकन्साइल करें विद द टैक्सेबल इनकम।
تو اس لیے وہ ریکانسیلیشن میٹر ہے. تو یہاں ہم نے جو بیلنس شیٹ دینی ہے یہ بیلنس شیٹ ساری وہی ہوگی جو آپ کی بیلنس شیٹ ہے آڈیٹڈ بیلنس شیٹ فار دا ٹیکس ایئر فار دا ایئر اینڈڈ 2024 والی جو ہے آڈیٹڈ میں. تو اس میں سب سے پہلے اس میں اوپر آیا بیٹا لینڈ بھی ہوگی. سب سے پہلے لینڈ ہے, وہاں جتنی لینڈ کی ویلیو ہے وہ لکھیں. پھر بلڈنگ جو ہے وہ آل تھاٹ لکھیں, پلانٹ اینڈ مشینری لکھیں, موٹر وہیکل لکھیں. وہاں ہو سکتا ہے اس طرح نہ ہو, وہاں یوزلی کلاسیفیکیشن آج کل 2 کلاسیفیکیشن ہے, نان کرنٹ ایسٹ اور کرنٹ ایسٹ. تو نان کرنٹ ایسٹ میں جو آپ کے فکس ایسٹ جو ہیں یوزلی لانگ ٹرم نیچر کے ہوتے ہیں جو نان کرنٹ میں ہوتے ہیں, اس میں فکس ایسٹ آپریٹنگ فکس ایسٹ علیحدہ, لینڈ بلڈنگ پلانٹ مشینری یہ وہ وہیکل شیکل یہ علیحدہ ہیں, ڈیپریشیبل والے سارے علیحدہ ہیں. اس کے علاوہ لانگ ٹرم انویسٹمنٹ لانگ ٹرم لون شون وہ علیحدہ ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ سارے آپ نے وہ ان کو ریکلاسیفائی لکھنے وہی آنے وہی ہیں ٹوٹل وہی ہونے, لیکن اس کو اس ترتیب میں لکھنا ہے. ٹھیک ہے, یہاں کچھ رہ جائے گا تو وہ ادر میں وہ ڈال دے گا. تو آپ نے یہاں پرسکرائب فارم اور ہے وہاں اور ہے, تو وہاں سے اٹھا کے جو چیزیں مانگی ہیں وہ اس میں ڈال دینی ہے, جو نہیں مانگی وہ ادر میں رکھ دینی. اسی طرح شیئر ہولڈر ایکوٹی اور لائبلٹی میں جو پرسکرائب کی ہیں اس کے بتاؤ ڈالنی, جو رہ جائیں گی وہ ادر میں ڈال دیں. تو پہلے آپ نے لینڈ, وہاں سے لینڈ اٹھانی ہے, شیڈول میں سے مل جائے گی آپ کو. بلڈنگ جو ہے آل سارٹ جو ہے وہ ریٹن ڈاؤن ویلیو والی نہیں, ویسے اکاؤنٹنگ میں جو آپ کی وہ ہے. پلانٹ اینڈ مشینری بھی ریٹن ڈاؤن ویلیو اکاؤنٹنگ میں جو ہے وہ ڈال دیں گے. موٹر وہیکل جو ریٹن ڈاؤن ویلیو اکاؤنٹس میں وہ ڈال دیں گے. اس کے بعد انٹینجیبل جو اکاؤنٹس ہیں وہ پری آپریشن اگر کوئی ہے کیپٹل ورک ہے لانگ ٹرم انویسٹمنٹ ادھر ہوں گے, یہ نان کرنٹ ایسٹ میں ہی ہوں گے. اور ایڈوانس ڈپازٹ پری یہ شارٹ ٹرم یہ یہاں سے شارٹ ٹرم یوزلی شروع ہو گئے, وہ کرنٹ ایسٹ جو ہے ادھر سے لے لیں. ڈیٹر ریسیور لے لیں. انوینٹری یہ اسٹاک اسٹورس پہ انوینٹری سارا اسٹاک ہے, اوپننگ کلوزنگ اسٹاک ہے جو وہ لے لیں. یہ اس سے میچ ہو جو پروفٹ اینڈ لاس میں آپ نے کلوزنگ کیا ہے وہ انوینٹری اسٹورس پہ کے علاوہ باقی سارے کو انوینٹری, اس کو انوینٹری بھی کہتے ہیں. تو یہ کنفیوژن نہ ہو کہ ادھر تو اسٹاک ہے تو ادھر کیا ہے. وہ اسٹاک 4-5 جو ہے ادر دین اسٹور جو ہے را مٹیریل ہو گیا, ورک ان پروسیس ہو گیا, فنش گڈز ہو گیا, تو وہ سارے تینوں کو ملا کے اس میں انوینٹری میں آپ نے جو بیلنس ادھر ہے کلوزنگ وہی ادھر ہے, اس سے مس میچ نہ ہو. شارٹ ٹرم انویسٹمنٹ ہے, شارٹ ٹرم ایڈوانسز ہے, ڈپازٹ پریمیم, کرنٹ پورشن اور لانگ ٹرم انویسٹمنٹ ہے. کیش اینڈ کیش ایکویلنٹ, کیش اینڈ کیش ایکویلنٹ سے مراد جو کیش ہیں اور لائک کیش ہیں جیسے بینک ہے یا کوئی بہت ہی لیکوڈ چیز ہے ابھی آپ کیش کروا سکتے ہیں تو وہ کیش ایکویلنٹ ہے. کیش اور بینک ایسے سمجھ لیں, کیش اور بینک جو ہے وہ اس میں آپ ڈالیں گے. تو یہ اس کے علاوہ جتنے اس آڈیٹڈ اکاؤنٹ فائنینشیل میں جو باقی ایسٹ رہ گئے وہ آپ نے ادر میں رکھ دینا. جو اسپیسیفائڈ ہیں وہ اسپیسیفائی میں, جو انسپیسیفائی میں وہ سیٹ میں, تاکہ ٹوٹل اس سے ٹیلی ہو. کلیئر. اسی طرح پھر آپ آتھورائز کیپٹل ہے وہ لکھ دیں. اس کے بعد سب یہ وہاں ہے ہی شیئر ڈپازٹ منی وہاں ہو تو لکھ دیں نا. کیپٹل ریزروز ہیں, ریونیو ریزروز ہیں, فنڈز ہیں جیسے آپ کی این پی او یہ وہ ہیں اس میں یہ فنڈ کا ورڈ آ جائے گا, یا سروسز ہے تو اس میں فنڈ آ جائے. ایکومولیٹڈ پروفٹ ہیں, ڈیویلیوشن سرپلس ہے, لانگ ٹرم بارونگ ہے, لائبلٹی ہے سبجیکٹ ٹو فائنانشل ڈیٹ, ڈیفرڈ لائبلٹی ہے, پروویژن کنٹیجنسی ہے, یہ سارے ادھر سے ایڈوانسز ہیں. یہ کرنٹ لائبلٹی آ گئی, ٹریڈ کا پیبل ہے, باقی جو رہ گیا ادر میں لکھ دیں نیچے. اور ٹوٹل لائبلٹی اور کیپٹلز اور ایکوٹی جو ہے یہ ایسٹ کے ساتھ ملیں اور اکاؤنٹس کے ساتھ آپ کے مل جائیں. اس کو فل کر کے چیک کر لیں کہ ٹیلی دونوں میں ڈفرینس تو نہیں ہے, یا اس کے اور اس کے ڈفرینس میں علیحدہ علیحدہ تو نہیں. نیکسٹ بیٹا. وہ آپ فل کر دیں گے ادھر میں. باقی اگلا ہیڈ دیکھیں نا, ہیڈ سارے ہو گئے. کیپٹل گین شین یہ وہ ہاں ڈیڈکٹیبل لمسز. ایک ڈائریکٹ ریشن زکوٰۃ والا بھی تھا وہ ٹوٹل انکم میں. یہ ورکر ویلفیئر ایڈ بیک میں نے جیسے کہا اس میں سے لیس کرتا. اب کیلکولیٹ کمپوٹیشن میں آئے نا, کمپیوٹر نہیں ود ہولڈنگ, پہلے کمپوٹیشن آئیں گے پھر ود ہولڈنگ آئے گی. کمپوٹیشن میں انکم فرام بزنس یہ وہ ساری آ جائیں گی نا. ٹھیک ہے, گراس انکم آ جائے گی, پھر آگے ٹیکسیں آئیں گے, ٹیکسنگ بھی ادھر چل جائیں. یہی ساروں ہیڈ کی جو ہم نے کمپوٹیشن کی ہے
इनकम फ्राम प्रॉपर्टी आ गई, उधर से इनकम फ्राम बिजनेस आ गई, कैपिटल गेन और कैपिटल लॉस आ गया, इनकम फ्राम अदर सोर्स है, फॉरेन इनकम कर देंगे, एग्रीकल्चर इनके टोटल इनकम के। यहाँ अब आ गए डायरेक्ट अलाउंसेस, डायरेक्ट किधर, हाँ डिडक्टेबल किधर है, हाँ डायरेक्ट अलाउंस, इसमें ज़कात है और वो है दो, और शेयर ऑफ प्रॉफिट AOP आ गया, टैक्सेबल इनकम आ गई, टैक्सेबल आ गई, नॉर्मल टैक्स कंप्यूटेशन, ये फिक्स मिनिमम एवरेज। तो फिक्स मिनिमम एवरेज जो है, रिड्यूस रेट, ये आप उधर देख लेंगे, वर्कर वेलफेयर है, टैक्स डिडक्शन है, टैक्स क्रेडिट है। तो अब देख लेते हैं कि विद होल्डिंग जो आपने क्लेम करना है टैक्स, तो उसका अलहदा शेड्यूल है, वो फिलफिल करेंगे। उसके दो पार्ट हैं, एक पार्ट एडजस्टेबल है, एक मिनिमम फिक्स, ये वो है। तो वो खोल लें, ये एडजस्टेबल है। इंपोर्ट पर जो टैक्स है 2% है, 3 है, 4 है, 5 है, इसमें हम डिटेल लेक्चर भी कर चुके हैं और इन प्रोसेस भी हैं कि विद होल्डिंग वाले रेट शेट क्या है, मिनिमम है, फाइनल है, या आपका नॉर्मल एडजस्टेबल है। इसी तरह कौन कौन से रेट हैं, किस प्रोडक्ट पे हैं, कितने, ठीक है। तो ये सारे इसके हैं, ये 161 प्रॉफिट ऑन डेट के हैं, 151 के, ये सारे आप फिल कर देंगे जितने भी आपकी विद होल्डिंग हुई है, यहाँ आप डालेंगे तो फिर क्लेम हो जाएंगे। इसके पेमेंट गुड्स है, सर्विसेज हैं, जितनी भी विद होल्डिंग है आपके तकरीबन 35-40 हेड हैं, रिसीट ऑन कॉन्ट्रैक्ट है, रेंट ऑफ मूल प्रॉपर्टी एटसेट्रा, नीचे ले आए बेटा। इसको फिल करेंगे। फिल करने से पहले MIS और इंक्वायरी से भी आप लेंगे और उसको ईयर वाइज आप देखेंगे और वहाँ देख लेंगे कि आपकी विद होल्डिंग इन हेड में, एडजस्टेबल में और अनएडजस्टेबल में कितनी कितनी है। उसको आप सॉर्टिंग करें, ईयर वाइज बनाएं, फिर देखें यहाँ क्लेम भी करने और साथ करस्पॉन्डिंग जिस चीज़ पे ये डिडक्शन या विद होल्डिंग हुई है वो एक्सपेंस है, एसेट है, इन्वेस्टमेंट है, लाइबिलिटी है, बैंक है, क्या चीज़ है, उसको करस्पॉन्डिंग भी आपने करना है कि आपका वो डिस्क्लोज है कि नहीं है। इस तरह आपका प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी 236 सी हुआ है तो सेल की है, तो देखें आपने प्रॉपर्टी सेल भी की है, उसका गेन भी है कि नहीं, डिस्पोजल डाली है कि नहीं। इस तरह आपने परचेज की है, तो 236 के होगा, तो के लगा है विद होल्डिंग, आप इधर क्लेम कर रहे हैं, देखें कि प्रॉपर्टी कौन सी परचेज की है, फिक्स एसेट में उसको डाला है कि नहीं डाला, उसकी रिक्वायरमेंट क्रॉस चेक की है, वो आपने की है कि नहीं, उस लिमिट से ज़्यादा है, कम है, डेप्रिसिएशन क्लेम की है कि नहीं। तो हर हेड को मिन्यूटली और आपने प्रॉपरली एवेल्यूएट करना है। क्लेम पहले तो देखने हैं कि क्या क्या डिडक्शन है, फिर एक्सप्लोर करने हैं, उनकी डिटेल इन्वेस्टिगेशन करनी है कि ये किस चीज़ पे क्लेम करना है, तो वो कॉरस्पॉन्डिंग चीज़ जो है वो पार्ट ऑफ यूर ऑडिटेड अकाउंट जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लो, इसका पार्ट है कि नहीं, डिस्क्लोज्ड है या नहीं, और उसकी कॉरस्पॉन्डिंग इनकम, एक्सपेंस या एसेट, इन्वेस्टमेंट है कि नहीं, वैल्यूएशन सही है या कंप्लायंस ऑफ लॉ की है कि नहीं है। तो हर एक को क्लेम करते वक्त इमीडिएटली देखें कि वो चीज़ भी है। जैसे सर्विसेज हैं, आपने किसी को रेंडर की तो इस पर डिडक्शन हुआ, तो आप उधर देखें कि आपने सेल में सर्विसेज डाली हैं कि नहीं उस पार्टी थे। इसी तरह बाकी हर हेड को इसी तरह मिनटली एग्जामिन करना है, ये जितनी भी डिडक्शंस हैं कि कॉरस्पॉन्डिंग चीज़ जो है एसेट, लायबिलिटी, रेवेन्यू, एक्सपेंस है, वो आपने रिपोर्ट किया है कि नहीं किया। इनका ना एक विदहोल्डिंग क्लेम करते हुए एक इशू आता है कि जिस तरह गुड्स है, सर्विसेज है 153 की, इसमें एक एग्जांपल है कि जिस तरह 153 182% इन्होंने लिखा हुआ, तो विद होल्डिंग एजेंट वो समटाइम उस कोड में टैक्स विद ऐड कर लेते हैं जो फॉर्म में होता ही नहीं है। जिस तरह 3% उन्होंने काट दिया तो ये फॉर्म में है ही नहीं। ठीक है, ठीक है। फिर उसको क्लेम कैसे करें? MIS में वो आ रहा होता है, MIS में आ रहा है, तो इसमें कोई अदर है? फॉर्म में वो कोड अवेलेबल नहीं होता। बात का तो एडजस्टेबल नॉन एडजस्टेबल का फर्क होता है। बात का तो वो कंपनी को AOP में काट देंगे, AOP को कंपनी, ठीक है, ठीक है। तो उसकी रेक्टिफिकेशन के लिए एप्लीकेशन देना पड़ती है वहाँ, वो फिर दे के आप सही वाला देते हैं, वो सर्टिफिकेट देते हैं, पीछे सिस्टम में सही करते हैं, फिर वहाँ से वो लेंथी प्रोसेस। तो यहाँ या तो कोई अदर हेड है इसमें, अगर पहले होता था तो पहले इसके बाद अदर भी होता था, तो ये वाली चीज़ें हम उधर डाल लेते थे। जो रह गया कि हमारा क्लेम तो लेजिटिमेट है तो उसमें डाल लेते थे। लेकिन अब क्योंकि ये सारा सिस्टम ऑटो सिस्टम है, वो हम सेल्फ अपनी कोई इसमें एंट्री करना चाहें, कोई डालना चाहें तो वो आप नहीं डाल सकते।
तो इसलिए उसका फिर यही है कि जब आपको ऑर्डर कोई आएगा, क्लेम नहीं आएगा तो रेक्टिफिकेशन करें। रेक्टिफिकेशन में आप करें ये मेरा क्लेम था, ये कंप्यूटर फॉल्ट है, सिस्टम फॉल्ट है, मैं क्लेम नहीं कर सकता क्योंकि वहाँ जगह नहीं है, ये फॉल्ट उसका है, थर्ड पार्टी का है, उसके लिए मैं लायबल नहीं। लेकिन उन्होंने इसके लिए प्रॉपर प्रोसीजर दिया हुआ है कि कैसे आपने चालान जो है इनकरेक्ट को करेक्ट करवाना है। उसका फिर उसको देंगे, एफिडेविट देगा, जिसने काटा है, गलत किया है वो भी देगा, वो फिर करेक्ट होगा, फिर वो खुद इसका क्लेम जो है सिस्टम वाले, प्राल वाले देंगे। तो वैसे अगर जिस तरह 3% घटा हुआ है तो 2% में इसको फॉर द टाइम भी कर सकते हैं मैनेज? हाँ कर सकते हैं, वो आपका क्लेम है, यहाँ कहीं भी डाल लें, डलता है तो डाल लें। लेकिन सर वो फिर मिनिमम का फर्क ज़्यादा पड़ जाता है या कम हो जाता है? तो वो उतना दे लें। अगर आपका 2 कटा है आप 3 में डाल लें, डिफरेंस दे दें, ठीक हैं? वो नीचे टोटल में आएगा ना। जी सर। डिफरेंस देने को तैयार नहीं है। नहीं, नीचे हो सकता है वैसे ना दिया हो, आप उसमें वो 2 वाला है तो 3 में डालना है, क्या करना है? जी सर, अगर नियर रेट के हाँ तो ऊपर वाले में डाल लें, 1% डिफरेंशियल वो निकाल देगा, नीचे निकालेगा, नीचे खुद ही एडजस्ट हो जाएगा। सर उस तरह की भी करते हैं कि जो टैक्स है ना उसको एक्चुअल नेचर के मुताबिक रिवर्स करके उसको दूसरे कॉलम में फीड करते हैं, डिफरेंस आएगा MIS से एट दैट टाइम। नहीं वो तो वैसे भी MIS से भी अदरवाइज भी हो सकते हैं, लेकिन आप क्लेम जहाँ भी उसको कर सकते हैं, जहाँ भी अगर आपका जेन्युइन और एक्चुअल क्लेम है, लेजिटिमेट है, तो यू कैन क्लेम। तो इसी में अगर आपका 2-5 वाला आपका 2% कटा हुआ है, ठीक है ना, 2% कोई कटा 3% घटा वो यहाँ पे है नहीं है, इसकी एग्जांपल ले लेना, 3% घटा वो यहाँ पे है। वो एडजस्टेबल किसी और में पड़ा तो नहीं, वो उधर भी देखें तो उधर भी नहीं मिलता। नहीं, जब आप इधर डालेंगे तो इधर किसी में आ सकता है वो। ये सर ये जो कोड होते हैं ना, इस कोड के अकॉर्डिंग ठीक है, कोड का है, किस सेक्शन में कटा हुआ है? 153 में ये इशू है। 153A है, B है, C गुड्स कैरेज का गुड्स है, सर्विसेज है। दोनों में इशू आता है, ये दोनों में इशू आता है। चलो किसी में डाल दें तो उसमें आएगा फिगर। वो सर मैं ये बेसिकली इस तरह करते हैं, नियर वाले में डाल देते हैं। चलो डालने तो फिर क्या होगा, वहाँ डिडक्शन में तो नहीं आएगा वो, ये एडजस्टेबल है कि वो सारा निकलेगा ना। ये वाला एडजस्टेबल है। दूसरा खोले, फाइनल खोले, जरा टैक्स रेट खोले वो फाइनल। मिनिमम का फर्क तो इधर आएगा ना। नहीं खोले तो सही, 3 देखते हैं आपका है कि नहीं इधर। 3.1 खोले ना। ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया ना, वैसे ही इधर भी नहीं ठीक है, अगर कोई आएगा तो इधर भी नहीं है। इधर भी नहीं है। 1B में 1.5. वो असल में इस कोड से पता चलता है। अच्छा चले, अदरवाइज ऐसे समझ रहे हैं कि अगर किसी ने जमा नहीं कराया, आपको सर्टिफिकेट मिला है, आप क्लेम कर सकते हैं कि नहीं? फिर तो कर सकते कैसे? हैं। सर्टिफिकेट दिया हुआ है उसने दिया, यहाँ कैसे क्लेम करेंगे? CPR नहीं है। वो यहाँ तो सर वैसे भी CPR के बगैर ही क्लेम होता है। अच्छा ठीक है, तो यहाँ वो भी आप जहाँ मर्जी क्लेम कर लें, डॉक्यूमेंट है तो बाद में रिकंसिलिएशन ऑफ तो बाकी रिकॉन्सिलेशन में कर लें, तो यहाँ क्लेम कर लें, 5 वाले में कर लें, 6 वाले में कर लें, जहाँ भी क्लेम होता है कर लें। कॉलम जरूर क्लेम करें, ज्यादा तो आप उसको कहेंगे जी चूंकि मेरे पास अवेलेबिलिटी नहीं थी या विदहोल्डिंग है, टैक्स मेरा सही कट है, और हेड गलत है, देखे ना, इसको कहते हैं, इसको गलत सेक्शन में गलत कोड। या इसको कहते हैं सब्सटेंस ओवर फॉर्म। रियल नेचर करेक्टर फीचर ऑफ ट्रांजैक्शन इज टू बी लुक्ड इनटू, नॉट फॉर्म ऑफ रिपोर्टिंग इन द अकाउंट्स या एंट्री या रिटर्न। तो एक्चुअल आपका कटा हुआ है भाई, वो कैसे ख़त्म कर सकते हैं? जस्ट उन्होंने प्रेस्क्राइब नहीं किया, गलत किया, तो आपका लेजिटिमेट ट्रस्ट प्रॉपर्टी राइट जो है कैसे वो ख़त्म कर दें? जहाँ भी आप क्लेम कर सकते हैं कर लें। और डेप्रिसिएशन नहीं आपने की थी, उन्होंने आधी की थी, आपने कहीं एडमिशन में कर ली, जहाँ जगह मिलती है होती है कर लें, ठीक है ना? जिसमें हेड में भी आप कर सकते हैं उसको कर लें, अगर वो सिस्टम अलाउ नहीं करता। सिस्टम में वो प्रोविजन, बात अगर सिस्टम में एरर हो, उसके लिए प्रोविजन ही ना हो, तो आप क्या करेंगे फिर? वो आप या उसने ऑटो पे रिड्यूस कर दिया ड्यू टू एरर या एनी रीज़न, तो फिर आप उसको सही वाला कर लें। तो ये एक हर हेड को एडजस्टेबल वाले ऊपर हैं, और मिनिमम फाइनल और वो सेपरेट ब्लॉक वाले वो सारे नीचे हैं। तो सारों को आपने कॉरस्पॉन्डिंग इनकम या सेल या एसेट या लायबिलिटी या ट्रांजैक्शन वो आपने चेक करना है कि वो भी रिपोर्टेड रिकॉग्नाइज है कि नहीं। क्लियर? तो ये सारे एक एक करके आप नीचे तक कर लेंगे नेक्स्ट टाइम में।
हैं, ऊपर आ जाए बाकी भी। उसके बाद टैक्स रिडक्शंस है, टैक्स क्रेडिट है, डिफरेंट टैक्स क्रेडिट हैं जो इसके अंदर अलग भी होंगे, डोनेशन है, ये वो एटसेट्रा, बहुत सारे हैं ये वाले। हाँ जी, ये टैक्स क्रेडिट कंपनी के लिए अलग है, दूसरों के लिए डिफरेंट सेक्शन है। ये सारे आप असेस करें, जहाँ जहाँ आपके क्लेम है रेलेवेंट सेक्शन को भी पढ़ें, कितना है, कितनी अमाउंट है, कंप्यूटेशन कैसे है, वो सारे टैक्स क्रेडिट जो है वो आप सारे कर लें, उससे आपकी टैक्स लायबिलिटी कम हो जाएगी। क्लियर? ये फिल सारा अकॉर्डिंगली रेलेवेंट सेक्शन लिखे हुए हैं, उसको पढ़ लें, आप कितना एलिजिबल हैं उसके मुताबिक क्लेम कर लें। नेक्स्ट वीडियो ऊपर आए, ऊपर किधर है, ऊपर ऊपर किधर, टैक्स क्रेडिट हो गया, टैक्स फॉर बैंकिंग का अलहदा हो गया, बैंकिंग टैक्स फॉर बैंकिंग, टैक्स फॉर बैंकिंग और बैंकिंग टैक्स। अच्छा, टैक्स टर्नओवर, ये पहले टर्नओवर आ गए, 1% है, तो ये आप जो भी इसका रेट है आपका 1% है, जितना है वो टर्नओवर दें और कैलकुलेट करें। टर्नओवर ऑन द कॉटन जिनर के लिए लहदा है, टर्नओवर टैक्स 0.2 है, जिसमें भी आपके फाइल डिफरेंट रेट हैं टर्नओवर के उधर लिखे हुए हैं, तो उसके मुताबिक जो आप पे एप्लीकेबल है वो कर लें। फिर अल्टरनेटिव कॉर्पोरेट टैक्स, तो 17% इसकी भी कंप्यूटेशन है, जो अकाउंटिंग प्रॉफिट है उसका आप कैलकुलेट, ये भी मिनिमम टैक्स है। उसके बाद टैक्स ऑन डीम 7E वाला जो आया हुआ है वो देखें कि बनता है, तो हायर ऑफ 4C वाला है वो भी खुद ही कैलकुलेट कर देगा वो। इस तरह डिफरेंस ऑफ अल्टरनेट कॉर्पोरेट, डिफरेंस ऑफ मिनिमम टैक्स, ये डिफरेंस ऑफ मिनिमम टैक्सेबल, रिफंड एडजस्टमेंट अंगेंस्ट डिमांड ऑफ दिस टैक्स, अगर पिछले रिफंड पड़े हुए हैं आपके पास, डिमांड आ रही है तो वो भी आप अकॉर्डिंगली दे। आजकल वो कहते हैं पहले रिफंड ऑर्डर होना चाहिए वो, लेकिन आपको एडजस्टमेंट वो देते हैं, तो इधर आप कर सकते हैं, या रिफंड की एप्लीकेशन दे के फिर एडजस्टमेंट कर। ठीक है, टर्नओवर चार्ज, विद होल्डिंग टैक्स, ये विद होल्डिंग जो उधर से आया है वो वाला है आपका। एडवांस टैक्स आपने दिया है वो है, एडवांस टैक्स अंडर सेक्शन 145C है, एडवांस टैक्स बिल्डर्स हैं, तो एडमिटेड टैक्स है, डिमांडेड टैक्स है, एडवांस टैक्स, ये रिफंडेबल टैक्स ख़त्म हो गया। तो उसके बाद आपका बाकी हेड उधर से दे दें, एट्रीब्यूट्स हैं, अटैचमेंट है, एट्रीब्यूट्स हैं, ये हाँ डेप्रिसिएशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अमॉर्टाइजेशन और ये वाले इंटेजिबल को अमॉर्टाइज करना है, तो ये वाला आपने फिर फुल करना है जितनी डेप्रिशिएबल एसेट है। तो अमॉर्टाइजेशन में ये इंटेजिबल लिखेंगे, ये एक्सपेंडिचर इनकी कैटेगरी हैं, इनके रिमेनिंग यूजफुल लाइफ लिखेंगे, एक्सटेंट ऑफ यूज़ लिखेंगे, तो वो अमॉर्टाइजेशन लिखना है जी। वहाँ जो अकाउंटिंग में की है वो एड बैक करेंगे, ये वाले आप लेस करेंगे। अब डेप्रिसिएशन पे आ जाएं। डेप्रिसिएशन पे आप कोड ये है, वो रिटन डाउन वैल्यू पिछले साल वाली क्लोथिंग जो है इस साल आप डाउनलोड कर देंगे। इसमें एडिशन डिलीशन है तो वो ऐड कर देंगे। अब जो एडिशन हुई है तो एडिशन वाले के लिए विद होल्डिंग ये वो आप वो देखेंगे कि वो हैं सारी। इस तरह डिलीशन में गेन शेन आपने कंप्यूट करना है, जो अकाउंटिंग में इन्हें रिवर्स करना है, टैक्स गेन कैलकुलेट करके उधर डालना है, टैक्सेबल है नहीं है उसके मुताबिक करना है। एक्सटेंट ऑफ यूज़ जो है वो यूज़ आपने देखना है कितना यूज़ है, 100% है नहीं है। तो इस तरह एडिशन न्यू एक्सटेंट ऑफ यूज़ है, इनिशियल डेप्रिसिएशन के रेट है, पहला साल है बिल्डिंग प्लांट मशीनरी वो कर सकते हैं। उसके बाद डेप्रिसिएशन होगी, क्लोजिंग रिटर्न अवेलेबिलिटी होगी, तो ये आपकी डेप्रिसिएशन क्लेम हो जाएगी। और वो वाली जो एड बैक अकाउंटिंग वाली जो है मैन्युफैक्चरिंग में और जो एडमिन मैनेजमेंट दोनों ऐड करके वो एड बैक कर देंगे, ये अलाउ कर देंगे। तीसरा आपके इसमें बाकी रेट शेट आप थर्ड शेड्यूल में से उधर से सारे देख सकते हैं, तो उसके मुताबिक कर देंगे। अब इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो एक चीज़ है इसमें वो है लीज एसेट्स और एक व्हीकल्स। व्हीकल की लिमिट है कि इस लिमिट तक आप उसकी क्लेम कर सकते हैं, ऊपर वाले आप उसको क्लेम नहीं कर सकते, वो लिमिट के मुताबिक आपने करना है। लीज एसेट में यूजुअली अकाउंटिंग में आपका लीज एसेट डेप्रिसिएशन होती है वो रिवर्स कर देंगे। और जो टैक्सेशन है उसमें ना डेप्रिसिएशन अलाउ है और ना ही सेक्शन 28 है, ना डेप्रिसिएशन अलाउ है ना ही मार्कअप अलाउ है, बल्कि पूरी लीज पेमेंट जो आप करेंगे वो अलाउ है। तो जितना मार्कअप में वहाँ आपके फाइनेंशियल चार्जेस में एडेड है लीज पोर्शन का मार्कअप वो रिवर्स कर देंगे आप। तो और दूसरी डेप्रिसिएशन लीज एसेट वाली है, ये भी आप क्लेम ही नहीं करेंगे। अकाउंटिंग सारी आपने ऐड कर दी, उसमें लीज वाली भी है, सारी वो कर दी, और यहाँ कैलकुलेट करेंगे तो लीज एसेट वाली डेप्रिसिएशन नहीं क्लेम करेंगे। तो इसलिए डेप्रिसिएशन ऑन द लीज एसेट पे नहीं है और ना ही मार्कअप है, बल्कि फुल पेमेंट जो की है लीज पेमेंट
सारी एडमिसिबल है अंडर सेक्शन 28। इस तरह फाइनेंशियल एक्सपेंस जो है जो आपने अंडर उसके लिए स्पेशल अलाउंसेस जो है अंडर सेक्शन 28 है। 28 में आपने जो लोन लिया है और वो यूज़ हुआ है उसके लिए प्रेसिडेंट कंडीशन ये है कि यूज़ हो फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस, तो देन उसका जितना यूज़ वाला फिर उस पर जो भी प्रॉफिट ऑन डेट में बैंक चार्जेस भी मार्कअप भी है सारा वो आपका एडमिसिबल एक्सपेंस है। उसमें कोई एड लेस है नहीं यूज़ हुआ तो वो लेस कर दें, नहीं तो अदरवाइज बाकी लीज पेमेंट सारी बराबर। क्लियर जी, ये सारे उस चीज़ को सामने रखते हुए और एडिशन जो है क्योंकि जिस पे अगर कोई परचेज किया आपने तो उसमें 68A है या 75A जो क्रॉस चेक अगर आपने नहीं दिया तो अकॉर्डिंगली उस पर डेप्रिसिएशन भी आप नहीं कर सकते। 5 मिलियन से है 1 मिलियन है उसका मेरा ख्याल को मूवेबल के लिए और 5 मिलियन आपका फिक्स एसेट के लिए, तो आप इमूल प्रॉपर्टी के लिए वो लिमिट भी आप चेक कर लें कि आप क्लेम कर सकते हैं कि हाँ 75A, तो उसको भी सामने रखें, विद होल्डिंग भी सामने रखें और क्रॉस चेक भी और कॉरस्पॉन्डिंग 236 जो है उधर वो भी सामने रखें और गेन शेन वाले टैक्स भी सामने रखें। तो एडिशन डिलीशन के लिए स्पेसिफिकली ये चीज़ें आपने और इनकॉर्पोरेट भी करनी है और चेक भी करनी 236C के और विद होल्डिंग और लिमिट फॉर बाइंग सेलिंग और डेप्रिसिएशन उसके अकॉर्डिंग और उसके कॉन्सिक्वेंस में। तो डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन रेट और रूल है इसका 13 जो कौन सा उसकी कंडीशन जो है वो भी आपने क्लेम करने के लिए इस तरह इनिशियल वाले की कंडीशनें भी पूरी करनी है। क्लियर जी, नेक्स्ट बिट। इस तरह बैड डेट के लिए सेक्शन 29 है, प्रोविजन एड बैक करना है, कोई एक्चुअल बैड डेट हुआ हो तो वो आपने क्लेम करना है, सब्सिक्वेंट रिकवर किया हो तो वो फिर वो टू दैट एक्सटेंट वो टैक्स होगा, उसको डिटेल आपने देखना होगा, बाद देख लें। और बेटा और मिनिमम पहले डिटेल हमारे लेक्चर पढ़े हुए उसी तरह मिनिमम वाले ले आएंगे। मिनिमम तो नॉर्मल का ही पार्ट होगा। अब 3 पार्ट हैं, पहले में टोटल है, फिर दूसरे में आपका फाइनल डिस्चार्ज वाला है या एग्जाम्प्ट है, तीसरे में नॉर्मल और मिनिमम है। आखिरी कॉलम जो है नॉर्मल टैक्सेशन करेंगे, मिनिमम से कंपैरिजन करेंगे, जो हायर होगा वो आप पे करेंगे। इस तरह कंप्यूटेशन करके तो ऑनवर्ड होगा। इसकी डिटेल मेरा ख्याल डिस्कशन होगी, बाकी फिल करेंगे, कोई इसमें मसला प्रॉब्लम हो तो अगली दफ़ा। बाकी हमारे लेक्चर पढ़े हुए हैं, मिनिमम पे भी फाइनल पे भी, इसको डिटेल भी पहले डिस्कस किया है। पहले ऑलरेडी भी हमने परचेज़ को कैसे रिकॉग्नाइज करना है, परचेज से जो डिटेल रिटर्न में हमने डिस्कस किए हैं, उसको भी इसके साथ आप देख के कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। इसमें एट्रीब्यूट वाला रह गया है, अटैचमेंट और एट्रीब्यूट और पेमेंट। ये पेमेंट है तो पेमेंट का आप इस भी हाँ बना है तो पेमेंट का चलान जो बनाना है वो ऑलरेडी पता है। अटैचमेंट जो है रिक्वायर्ड है, मैंडेटरी जो साथ करनी है वो अटैचमेंट कर दें। और एट्रीब्यूट को भी रेजिडेंट है नॉन रेजिडेंट है या उसके भी नेचर ऑफ बिजनेस ये वो इधर वो उसको भी फिल कर दें। अटैचमेंट, एट्रीब्यूट्स, कंपनी डायरेक्टर, पेमेंट, ऑप्शन, मिनिमम, डेप्रिसिएशन, अमॉर्टाइजेशन, डेटा, सारी चीज़ें फिल कर लें, चेक कर लें। और थैंक यू वेरी मच। इंतहाई मशकूर सर मंशा सुखेरा साहब का। और कंपनी के इनकम टैक्स रिटर्न के हवाले से उन्होंने बड़ा डिटेल लास्ट लेक्चर और मौजूदा लेक्चर में भी उन्होंने रहनुमाई की। इससे मतलब कोई सवाल जवाब होंगे तो चलो नेक्स्ट रिटर्न में कर लेंगे, या फिर अकॉर्डिंगली हम नेक्स्ट रिटर्न में जो ऑलरेडी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस को हम कंटिन्यूशन में देख रहे थे तो उसको हम अकॉर्डिंगली कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया।